we will go into the Word of God straightway. And can I request Brother Chris, can you do a short prayer once again to dedicate the service? Brother Chris, can you do a short prayer for us and to the Lord? And you can pray in English, and it doesn't need a translation. And Brother Chris, if you can hear, can you please pray? Yes, I hear you. Yes. Our Heavenly Father, we come to you right now this morning because you have spoken in this time, and the message we listen is for preparing us for the great event that we are expecting for. So we thank you, Lord, for the morning, for the afternoon. We thank you for everything you do for us. So now gathered together, we want to listen your word. Oh, come down with the Holy Spirit to anoint everybody so that your son can listen to you, so that oh dear Lord, come down to speak to your people. Bless everybody, oh Lord. Give us in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you, dear brother Chris. And now if we can, we thank you for this wonderful prayer. We thank God, and our prayer has reached the mansions of our Almighty God in heaven. And He is listening and He is with us. And Brother Chris, can I request you to please mute your microphone? You can now switch off your microphone. Thank you, brother. God bless you. God bless you. Greetings once again, brothers and sisters in Christ. Brother Jaswinder, are you able to record the meeting now? Yes, brother. Recording is ready. God bless you. Amen. So once again we greet all brothers and sisters in the name of Jesus Christ our Lord. आप सभी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से सलाम कहता हूँ. We are very happy every time that we can come together in the name of Lord Jesus Christ our Savior. हम हमेशा खुश होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब भी इकट्ठे होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं. We know why are we here in this world. We have a purpose. हम जानते हैं कि हम इस संसार में क्यों हैं, किसी मकसद के लिए हम इस संसार में हैं. We are a part of the population of this world, but we are different. हम इस संसार में जरूर हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं. We are different people. हम इस संसार से थोड़ा अलग लोग हैं. And the world must come to know that we are different people. और ये दुनिया जाने कि हम दुनिया से अलग क्यों हैं. The world may think we are foolish people. दुनिया हमें मूर्ख समझती है. The world may think we are very uneducated people. दुनिया हमें एक अनपढ़ और अज्ञानी समझती है. The world may think that we don't know too much of technology and the modern things. और दुनिया समझती है कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है. But that is what the world thinks. ये वो है जो दुनिया सोचती है. But as children of God, we know what Lord thinks about us. और प्रभु के बच्चे होने के नाते हम जानते हैं कि प्रभु क्या हमारे बारे में सोचता है. We know it says in the book of Romans. और देखिए रोमन्स की किताब में ये लिखा है. In chapter 8 of Romans. और रोमन्स की किताब और उसका 8 चैप्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है. It says, as many as are led by the Holy Spirit, they are the children of God. लिखा है कि जो भी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं. This is the very, very important thing for us. ये बहुत जरूरी विषय है हमारे लिए. We are not led by men of this world. हम किसी इंसान के अगुवाई में इंसान के द्वारा चलाए नहीं चलते.
Even though God used human beings and his prophets and disciples and apostles to write the word of God in the Bible, और देखिए पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने नबियों को इस्तेमाल किया, प्रेरितों को इस्तेमाल किया, सेवकों को इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए। and to vindicate his word and to do the work of God, God used human beings although, और देखिए परमेश्वर का वचन ये साबित करता है कि किस तरह उसने अपने सेवकों को इस्तेमाल किया अपने कलाम के लिए। but this did not become the word of those people. पर देखिए फिर भी ये कलाम उनके लिए ये कलाम नहीं बन पाया। This is not the word spoken by those people. ये जो वर्ड है, ये कलाम है, उनके साथ बात नहीं कर पाया। We know the Bible, historical proof says the Bible was written with a span of 1600 years. और हम जानते हैं कि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि बाइबल जो है तकरीबन 1600 साल का अंतराल में लिखी हुई है। And the holy men were inspired and moved by the Holy Spirit. The men of God were moved by the Holy Spirit and they were 40 people. और देखिए परमेश्वर के दास नबियों ने इस कलाम को अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लिखा। और देखिए 40 जाने हैं, 40 जानों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये कलाम लिखा। And this word of God that we have today in the written form is available to us in 66 books in two testaments, the Old and the New. और देखिए परमेश्वर का कलाम जो है अब हमारे पास 66 किताबों में हमारे बीच में मौजूद है, और 2 नियम है, पुराना नियम और नया नियम। We have 39 books in the Old Testament and 27 in the New Testament. और हमारे पास 39 पुराने नियम की किताबें हैं, और God has a purpose for this. परमेश्वर का कोई मकसद है इसके लिए। The whole will of God, the whole plan of salvation, the whole plan of redemption is here from the beginning till end. और देखिए परमेश्वर का मुक्ति का प्लान, उद्धार की योजना, छुटकारे की योजना और इस कलाम में परमेश्वर ने लिखी हुई है। The book of Genesis starts when God steps out from eternity and into the time dimension and starts creation and starts doing his plan. और देखिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में किस तरह परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, कायनात को बनाया, और सारी चीजों को बनाने का जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में लिखा है हर चीज की रचना को। And every human being since they were born, since the creation was created, is under the time dimension. और हर एक मनुष्य को उसने उसके समय पे ही पैदा किया है। And we are also living in a time dimension. और हम भी जो हैं उसी परमेश्वर के समय की योजना का हिस्सा हैं। But this time dimension will not continue until eternity. और ये जो समय की अंतराल है ये कंटिन्यू नहीं रह सकता जब तक परमेश्वर न चाहे। The time began and time will finish. समय शुरू होता है और समय खत्म भी हो जाता है। Everything that starts, it has an end. जिस चीज की भी शुरुआत है उसका अंत भी है। There is only one eternity, that is God. एक ही है जिसका शुरुआत और अंत नहीं है, वो परमेश्वर है। There is no second eternity. और देखिए परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा अनंत काल नहीं है। God was never born and God will never finish. देखिए परमेश्वर ना तो पैदा हुआ है, ना ही परमेश्वर खत्म होगा। He is eternity to eternity God. वो हमेशा हमेशा युगों युगों रहने वाला परमेश्वर है। Bible tells us even hell is not eternal. और देखिए पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यहाँ तक नरक भी जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। If many people think hell is eternal. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नरक जो है वो हमेशा रहेगा। But if hell is eternal, then there are two eternities. अगर नरक भी हमेशा रहेगा तो इसका मतलब 2 चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी। That means there is somebody against God who is also as powerful as God. इसका मतलब परमेश्वर के विरुद्ध भी जो है वो भी शक्तिशाली बहुत है, हमेशा रहेगा। But Bible says the hell was created. और बाइबल कहती है कि नरक जो है वो पैदा किया गया है, बनाया गया है। Bible says God knew what the devil will do, what Lucifer will do. God knew this. परमेश्वर जानता है कि शैतान लूसीफर क्या कर रहा है और क्या करेगा, परमेश्वर जानता है। He was one of the chief angels.
और वो भी एक समय में देखिए मुख्य स्वर्गदूत था परमेश्वर का, And God, he was also the creation of God. और वो भी देखिए परमेश्वर की ही रचना है, लूसीफर शैतान। And like him, there were so many angels before we were created. और देखिए उसी की तरह और भी बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। But God knew what this devil, what this Lucifer will do one day. और देखिए सिर्फ परमेश्वर जानता है ये शैतान जो लूसीफर है ये एक दिन क्या करेगा। God did not program Lucifer to act like what he acted. परमेश्वर ने लूसीफर को ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है कि अब हर चीज जो है पहले से ही तैयार की हुई है। God did not create robots. परमेश्वर ने किसी को रोबोट नहीं बना दिया हो कि सारा कुछ पहले से ही इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है। All the creation in the form of angels and human beings, they have their own freedom of choice. देखिए यहाँ तक सारी सृष्टि को जिसने भी परमेश्वर ने बनाया है, जानवर, इंसान, सब चीजों को परमेश्वर ने उनको आजादी दी है फैसला लेने की, गलत सही उन्होंने खुद चुनना है। But God knows by his foreknowledge that what somebody is going to do. लेकिन परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से ये जान लेता है कि कोई व्यक्ति जो है वो आगे जाके क्या करेगा। So the real meaning of predestination is foreknowledge. और जो पहले से चुनाव का सही जो मतलब है वो ये है कि पहले से ही जो है चुना हुआ। God knows before something is created that how that creation will behave. परमेश्वर जानता है कि जिस चीज को उसने पैदा किया है उसका स्वभाव कैसा होगा। And because of that, he has those people's name in his book. इसीलिए लिखा है कि उनके नाम जो है परमेश्वर के मेमने की किताब में लिखे हुए हैं। God does not write our names in his book by design. परमेश्वर ने हमारे नाम अपनी किताब में किसी डिजाइन के तरीके से नहीं लिखे हुए हैं। He has not designed our lifestyle. He has not designed it. उसने हमारी जीवन की जो जीवन है हमारा वो उसने अपनी किताब में डिजाइन करके नहीं लिखा हुआ है। He has given us a choice, a free will. उसने हमें पूरी छूट दी है फैसला लेने की, सही या गलत वो हमने लेना है। Likewise, this angel also had a free will. इसी तरह स्वर्गदूतों के पास भी पूरी आजादी है फैसला लेने की। And he was a creation. और देखिए परमेश्वर जो है वो रचयिता है। That is why he was a creation. The devil was a creation. ओके, शैतान जो है वो भी रचना है, रचयिता नहीं, शैतान भी रचना है। And God knew what this creation was going to do. और परमेश्वर जानता है कि ये रचना आगे क्या करने जा रही है। And God knew this fellow will not repent. और परमेश्वर जानता है कि ये रचना जो है तौबा नहीं करेगी। God knew he is very cunning and he is very hardened of his heart. और परमेश्वर उसके दिल को अच्छी तरह से जानता है कि ये इसका मन और इसका दिल कैसा है। And God knew his only purpose in this to the further creation will be to pervert it and deceive it. और परमेश्वर ने इसीलिए रखा हुआ है कि परमेश्वर दोबारा से रचना करेगा और ये खराब करेगा, परमेश्वर दोबारा रचना करेगा। And God knew that many will follow him. परमेश्वर जानता है कि बहुत सारी दुनिया जो है इसके पीछे चलेगी शैतान के। Not only the angelic world, not only the part of the angels, but also the human creation. सिर्फ स्वर्गदूतों का एक हिस्सा ही नहीं उसके पीछे चलेगा, बल्कि मनुष्यों में भी बहुत सारे लोग उसके पीछे चलेंगे। And we can read it from the history of the Bible, right from the Genesis until now, continuing. और ये बात हम जो है उत्पत्ति से लेके और सारी बाइबल में पढ़ सकते हैं और जानते हैं that this fellow, this devil, this Lucifer, who was called devil later on, once he was thrown down from the heavens. देखिए ये भी एक फरिश्ता था जब तक ये गिराया नहीं गया, लेकिन जब ये स्वर्ग से गिराया गया तब ये फरिश्ते से शैतान लूसीफर बन गया। So he was a creation. और वो देखिए शैतान भी एक रचना है। And God knew that he is not going to change himself, so he must be destroyed. परमेश्वर जानता है कि ये तौबा नहीं करेगा, ये मन नहीं फिराएगा, इसलिए परमेश्वर उसे खत्म करने जा रहा है। And our God Elohim is a bundle of many attributes in plural. Attributes in plural. और हमारा जो है एक परमेश्वर है, लेकिन वो बहुत सारे गुणों और खासियतों से भरा हुआ है, लेकिन एक ही है। Our God is one God.
हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, but he has so many attributes. लेकिन उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। One of the attributes is he is a creator. उनमें से एक गुण ये भी है उसका कि वो रचयिता है। He showed it by his creation, that attribute. उसने ये अपनी रचना के द्वारा साबित किया कि वो रचयिता है। He also is love. उसने अपना प्रेम भी हमें दिखाया। When we were lost, his love was not lost. He still established his love. देखिए, जब हम गिरते हैं, डगमगाते हैं, वो अपना प्रेम नहीं खोता, हमें अपना प्रेम दिखाता है, हमें संभालता है। Because he is our creator. क्योंकि वो हमारा रचयिता है। He is our heavenly father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है। We left him, but he did not want to leave us. हम कई बार उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। So before the foundation of the world, he made a plan to recover us, to redeem us. देखिए, उन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये एक योजना बनाई कि कैसे मनुष्य गिरेगा और कैसे वो संभालेगा। He knew about the fall and he knew about redemption. वो जानता था कि गिरेगा कैसे और परमेश्वर उठाएगा कैसे, ये सब जानता था वो। He knew who will fall and who will be redeemed. और यहाँ तक ये भी जानता है कि कौन मनुष्य गिरने जा रहा है और कौन दोबारा खड़े होने जा रहा है। He did not design or fix their future. He did not design or fix their lifestyle. उसने हमारा भविष्य जो कोई डिजाइन करके फिक्स नहीं कर दिया हुआ है। But he knows, because he is God, that what his creation is going to do. लेकिन वो रचयिता होने के नाते जानता है कि उसकी रचना क्या करने जा रही है। So he had another attribute, that he is a savior and redeemer. उसका देखो एक और गुण है कि वो छुटकारा देने वाला, बचाने वाला परमेश्वर भी है। He expressed that attribute in the form of manifesting himself as a man, Jesus Christ. उसने देखिए अपना प्रेम जो है इस तरीके से साबित किया, वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बन गया, शरीर में आ गया और प्रभु यीशु मसीह कहलाया। He knew he cannot express that attribute just as a Holy Spirit, because God is Spirit. परमेश्वर जानता था कि वो अपना प्रेम जो है वो आत्मा के द्वारा नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसे मनुष्य बन के आना पड़ा। That God, which is a Spirit, was fully manifested in the man Jesus Christ. और देखिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो था वो पूरी तरीके से ही शरीर में दिखाई दिया, शरीर में प्रकट हुआ यीशु नासरी के नाम से। So Jesus Christ had two aspects. और देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा परमेश्वर है। He was a complete man. वो देखिए पूरी तरह मनुष्य भी है। And he was a full divine God. और देखिए वो परमेश्वर भी है, दोनों ही गुण पाए जाते हैं उसमें। God is Spirit. परमेश्वर आत्मा है। Spirit of God is everywhere. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। He can speak and work from anywhere, anytime. वो किसी भी जगह कभी भी बोल सकता है, अपना कार्य कर सकता है। Although he is everywhere, yet he cannot be limited to one person. He cannot be limited to one area. और देखिए मनुष्य से ये नहीं हो सकता कि वो एक जगह पर है और दूसरी जगह पर भी हो। But God dwelt in the man Jesus Christ in fullness. और देखिए परमेश्वर जो था वो शरीर में प्रकट हुआ और संपूर्णता में प्रकट हुआ यीशु नासरी के नाम में, रूप में। And God manifested himself through his son, Lord Jesus Christ, in the form of flesh, in the form of a man. परमेश्वर देखिए शरीर में प्रकट हुआ, शरीर में दिखाई दिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हमें प्रकट हुआ जमीन पर। Because he had to re-establish the relationship between him and us, which was broken since the sin had come. और देखिए जो हमारा रिश्ता बाग अदन में गुनाह के कारण टूट गया था, उसने दोबारा से हमारा और अपना रिश्ता दोबारा से जोड़ा। To express his attribute as a savior and redeemer, he had to become man. और देखिए उसने अपना प्रेम इस तरीके से प्रकट किया कि हम पापी थे तो वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आ गया। Now another attribute of God is that he is also a judge. और देखिए परमेश्वर की एक खूबी ये भी है कि वो जज, न्याय करने वाला भी है। We read in the book of Genesis chapter 1 that during the process of creation, God separated the light and the darkness. हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। The light represents God. और देखिए जो जीवन है वो परमेश्वर को दर्शाता है। And darkness represents the sin. और देखिए जो अंधकार है वो गुनाह, पाप को दर्शाता है।
The light and darkness cannot stay together. और देखिए रोशनी अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकता, God and sin cannot stay together. परमेश्वर और पाप दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। But sin existed. लेकिन देखिए पाप मौजूद है, God is also existing. परमेश्वर भी मौजूद है। But sin did not exist from eternity. और देखिए लेकिन पाप जो है वो हमेशा नहीं रह सकता, हमेशा नहीं रहेगा पाप। Sin started somewhere. पर लेकिन पाप जो है उसकी शुरुआत जरूर हुई है, So it has to end somewhere. लेकिन इसका अंत भी है पाप का। So God, who is judge, he will not break his own law. परमेश्वर जो है वो जज भी है, वो अपना कानून नहीं तोड़ता। That's why he has to bring everything to judgment one day. इसीलिए परमेश्वर जो है इन सारी चीजों का एक दिन न्याय करने जा रहा है। So sin has an origin, so sin also has to become an end. देखिए पाप की ये शुरुआत भी है तो पाप का अंत भी है। That is why God created hell. इसीलिए परमेश्वर ने नरक की पैदाइश की, नरक को बनाया है परमेश्वर ने। That is why hell is not eternal. इसीलिए जो नरक है जो हमेशा नहीं रहेगा। The fire in the hell can be a period which God knows how long that period will be. जो नरक में जो आग जल रही है उसको कब तक जलेगी उसका समय सिर्फ परमेश्वर जानता है। But it is not eternal. लेकिन ये जो नरक है और उसकी आग है ये हमेशा नहीं रहेगी। Because if hell become eternal and God is also eternal, then there are two things which are eternal, which is not possible. देखिए अगर नरक भी युगो युग रहेगी, परमेश्वर भी युगो युग रहेगा, तो ये दो चीजें कैसे युगो युग रह सकती हैं? God cannot give his glory, his status, his position to anything else. परमेश्वर अपना नाम, अपनी महिमा, अपना जलाल किसी भी चीज को नहीं देता। That is why we, as children of God, as creation of God, we know this very well. हम जो हैं परमेश्वर के बच्चे, बेटी बेटियां होने के नाते हम ये चीजें जानते हैं। So we are in this journey in this world. हम इस दुनिया में एक सफर पर हैं। In this world we have a beginning, and in this world we will have an end. इस दुनिया में हमारी शुरुआत है, पैदाइश है, इसी दुनिया में हमारा अंत भी है और खात्मा भी है। Every human being, every child, whoever is born in this world must leave this world one day. There is no doubt about it. इस जगत में कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य जो पैदा हुआ है उसका एक दिन अंत है, उसकी एक मृत्यु है। But God has put his breath of life in us. लेकिन परमेश्वर ने अपना जीवित श्वास जो था वो हमारे अंदर डाला। When God made us a body from the dust, he put his breath into our nostrils. तो देखिए जब परमेश्वर ने हमें मिट्टी से रचा तो अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर डाला और देखिए हम जीवित प्राणी बन गए। After that only we become a living soul. उसके बाद देखिए हम जीवित प्राणी बने। उसके बाद Me and you who are talking and listening today, like many others, we are living souls. हम आज देखिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं बाकियों की तरह, क्योंकि हम जीवित हैं। Our human body is made of three things. हमारा मनुष्य शरीर जो है वो तीन चीजों से बना है। The body which we can see, the flesh and blood and bones, this is come from the dust. देखिए जो हम शरीर देखते हैं, खून देखते हैं, हड्डियां देखते हैं, ये परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से बनाया। When we receive the breath of life at the time we are born into this world, we become a living soul. जब परमेश्वर ने उस मिट्टी में अपना श्वास डाला तो वो हम जीवित प्राणी बन गए। And then the Spirit of God, which is a part of God, it is given to all of us. और देखिए उसके बाद तीसरी चीज जो पवित्र आत्मा, जो आत्मा है, जो परमेश्वर का ही भाग है, हमें दिया गया। These three things constitute when we are living on this earth. देखिए ये तीन चीजें इकट्ठी हुई तब जाके हम इस जमीन पर पैदा हुए हैं। The Spirit of God is a part of God in all of us. और जो आत्मा है, आत्मा जो है ये परमेश्वर का ही भाग है। Because in the book of Genesis we read God created man in his own image. अगर देखिए हम उत्पत्ति में पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। What is the image of God? What is God? और परमेश्वर का स्वरूप क्या है? God is Holy Spirit. God is the Spirit. John 4:24. परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना की इंजील कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। So what is the image of the Spirit?
और देखिए पर आत्मा की शक्ल क्या है, आत्मा का रूप क्या है? His creation in originality was a spirit being, a spirit man. और देखिए जो उसकी अच्छाई सच्चाई है और शुरुआत है, रचना है, वही परमेश्वर का आत्मा है। He created spirit man with male and female attributes together in it. जब उसने आदम का आत्मा बनाया तो उस आत्मा में उसने मेल और फीमेल, आदमी का और औरत के दोनों गुण डाले थे आत्मा में। We can read this in the book of Genesis chapter 1. We know it. और देखिए ये हम उत्पत्ति 1 में पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें। After he created, और जब बनाने के बाद परमेश्वर ने, then he formed man. तब जाके उसने मनुष्यों को बनाया। So this thing was in 2 steps. और देखिए ये दो पड़ाव हैं। He created a spiritual human being उसने देखिए पहले आत्मिक मनुष्य बनाया, आत्मिक मनुष्य with male and female both attributes. उस आत्मिक मनुष्य में औरत मर्द दोनों ही गुण थे उस आत्मा में। Then he formed man out of dust. और तब जाके उसके बाद उसने जमीन की मिट्टी से आदम को रचा। Then he put the breath of life into the nostrils of that man which he made from dust. और देखिए तब उसके बाद परमेश्वर ने जीवन का श्वास उस मिट्टी के पुतले में डाला, तब जाके वो पुतला जीवित प्राणी बन गया। Then that man becomes a living soul. तब जाके देखिए वो मनुष्य जो था जीवित प्राणी बना। So what is my soul? अब मेरा आत्मा, मेरी जान क्या है? मेरी जान, When I say this is me, I'm doing this, I'm eating this, I'm doing this, I'm thinking this, so who is me? जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, तो ये क्या है? My head, my body, my hands are not me. लेकिन मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पैर उस वक्त मेरे साथ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। They are my body. देखिए ये मेरी बॉडी का अंग है, बॉडी। So who is me? मैं कौन हूँ? I am the one who lives in this. मैं एक ही हूँ जो रह रहा हूँ। The 5 senses, the full body, flesh, bones and this thing is not me. देखिए जो 5 तत्व हैं, सुनना, देखना, 5 सेंस है, ये बॉडी का हिस्सा है। When I am living soul, it is a combination of my soul and my body. जब मैं एक जीवित प्राणी होता हूँ तो वो जीवित प्राणी जो मेरी जान है वो मेरे शरीर का अंगों का हिस्सा है, अंग का। My soul is actually my nature. मेरी जो जान है असलियत में वो मेरा एक स्वभाव है। It is my character. ये मेरा स्वभाव है, मेरी पहचान है। It is my characteristics. और ये मेरा एक स्वभाव है। This is real me. ये सचमुच मैं हूँ। This goes away when I am dead on this earth. देखिए ये निकल जाएगा जब मैं इस जमीन को छोड़ूंगा और So सो जाऊंगा। what carries from here when we leave this body? जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो क्या लेके जाएंगे साथ? My nature, my character. मेरा स्वभाव, मेरा परिचय, ये मेरे साथ जाएगा। What type of person I have been, what character, what nature I had. किस तरह का मैं मनुष्य था और मैं कैसा मनुष्य था इस जमीन पर, वो जाएगा। I will be rewarded or punished according to that. मैं आशीष या सजा उसके मुताबिक पाऊंगा। The soul need to be very careful. जो जान है वो बहुत लाजमी जरूरी है कि अपनी जान को सही रखें, साफ सुथरा रखें, सही Our soul should have control on our body. हमारी जो जान है वो हमारी शरीर जो है वो कंट्रोल करता है। The parts of our body are just tools made of ground. हमारे शरीर के अंग एक तरह का टूल्स है जो काम करते हैं। Our soul, which becomes our conscience, this gives a direction to our hands, our eyes, our ears to act. लेकिन हमारी जान जो है ये हमारे हाथों को, आंखों को, कानों को हुक्म देती है देखने सुनने के लिए। But our conscience, our nature should overcome these limbs, these 5 senses. लेकिन हमारी जान जो है वो इसके ऊपर अधिकार करेगी, जीतेगी इन सभी बॉडी के सभी अंगों के ऊपर।
These parts should not rule our soul. ये बॉडी के जो अंग है ये हमारी जान के ऊपर अगुवाई नहीं कर सकते, हमारी जान की। And besides our soul, the Spirit of God is in us. और देखिए इसके साथ ही आप ये देखें कि परमेश्वर का आत्मा भी बीच में है हमारे पास। The purpose of the Spirit of God in us to direct and correct us and prompt us to do things according to God. देखिए परमेश्वर के उस आत्मा का कार्य क्या है कि जो हमारे में गलतियां, गुनाह, एरर, पाप पाए जाते हैं वो आत्मा हमें ठीक करता है। So if our soul is in subjection to the Spirit of God, और देखिए अगर हमारा आत्मा जो है, जान जो है वो आत्मा के अधीन है, then we keep control on the five senses. देखिए तब हम अपने जो है पांचों अंगों को कंट्रोल कर सकते हैं। But if we don't listen to the voice of the Holy Spirit, अगर हम अपने कानों से पवित्र आत्मा की आवाज ना सुने, if we ignore it, अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया, if we reject it, अगर उसने उसे पवित्र आत्मा की आवाज को ठुकरा दिया, if we persistently try to live and ignore it, और बस हम ये है कि सुनते हैं लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते, if we become stubborn, और देखिए हम अगर लड़खड़ाने वाले हैं, if we make our heart a heart of stone, और देखिए अगर हमने अपने दिल को सख्त कर लिया कलाम सुनने के लिए, Holy Spirit is very gentle. पवित्र आत्मा एक बहुत ही भद्र जेंटलमैन, भद्र पुरुष है। Holy Spirit is the part of God in all of us. पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का ही एक हिस्सा है जो हमारे अंदर काम करता है। He will prompt us very sweetly, very nicely, like a gentle person. My child, do this and don't do this. देखिए पवित्र आत्मा बड़े ही आदर के साथ, प्रेम के साथ हमें समझाता है कि मेरे बच्चे ये कर, ये ना कर, और हमें अगुवाई गाइड करता है। God does not push somebody into something. परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। He is not a cruel God. वो कोई जिद्दी परमेश्वर, रूखा परमेश्वर नहीं हमारा। He does not want anybody to go to hell. वो नहीं चाहता, वो चाहता नहीं कि कोई नरक में जाए। But because he is supposed to honor his judgment, so many people will go to hell. लेकिन ये है कि वो एक न्याय करने वाला है, इसीलिए जो उसको रिजेक्ट करेंगे वो जाएंगे नरक। For that, God is not responsible. पर उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। For that, those who sin, they are responsible. ये उन मनुष्य के वो पाप गुनाह है जो परमेश्वर के कलाम को रिजेक्ट करवा देते हैं। Because God has not made us a toy. परमेश्वर ने हमें कोई खिलौना नहीं बनाया हुआ। God has not put a software in our body. परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में कोई सॉफ्टवेयर नहीं भर दिया हुआ कि कब बैठना है, कब खाना है। And the button of the software is not in the hands of God that He will make us sin or He will make us do good. ऐसा नहीं है कि हम रोबोट है और हमारा रिमोट जो है परमेश्वर के पास है, बैठना, उठना, खाना पीना सब रिमोट से चल रहा है। Because if it was like this, then God cannot judge us. अगर ऐसा होता तो सारा काम अगर परमेश्वर ही करवा रहा है तो फिर हमारा न्याय नहीं कर सकता था वो। Then He cannot punish us. फिर हमें वो सजा नहीं दे सकता जब वही सारा कुछ करवा रहा है। Then there is no necessity for hell. फिर इसका मतलब नरक की कोई जरूरत ही नहीं है। Then He loses His attribute of being a judge. फिर तो उसने अपना न्याय करने वाला रुतबा भी जो है खो दिया। He is love as well as He is judge. देखिए वो न्याय कर्ता के रूप में भी प्रेम करने वाला है। Because of His love, He redeemed us by the blood of His Son Jesus Christ on the cross. देखिए उसका प्रेम ये है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा दे दिया। And because of His judgment, because of His attribute as a judge, He will also punish the people in the fire of hell. देखिए इसलिए क्योंकि वो जज है, न्याय करता है, इसलिए वो गुनाहगारों को, दुष्टों को सजा देगा और नरक में डालेगा। So when we leave this world, जब हम ये संसार छोड़ेंगे there is a separation between the soul and the body. देखिए तब शरीर का और जान का जो है आपस में दोनों का सेपरेशन हो जाएगी, अलग अलग कर दिए जाएंगे। When a person is declared dead in this world, जब ये इस दुनिया में कोई मनुष्य को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, then he does not remain that person. इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वही व्यक्ति है जो मर गया है। He is not called the same person. वो उसी वही व्यक्ति नहीं होता। If Mr. X is dead, then he will not be called Mr. X who is dead. It is his dead body.
जब कोई मिस्टर एक्स मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर एक्स मरा, ये उसका शरीर मरा है मिस्टर एक्स का। Mr. X was the soul which has left him. लेकिन मिस्टर एक्स जो एक जान थी वो उसमें से निकल गई। That was the attributes and character and nature of Mr. X left the body. देखिए जो भी मिस्टर एक्स का स्वभाव, गुण थे, कमियां कमजोरियां सब जो था मिस्टर उस शरीर से निकल गए। And along with that soul, the Spirit of God also leaves the body. और देखिए उसी के साथ आत्मा जान जो है वो भी उसमें से निकल गए। And that spirit and the soul stay together until the day of resurrection. लेकिन देखिए आत्मा और जान ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, न्याय वाले दिन तक दोनों इकट्ठे रहते हैं। And they have to stay together. उनको इकट्ठे रहना है। But what goes to dust, which came from the dust? पर जो वो क्या जो मिट्टी से निकल गया, मिट्टी से बना। As soon as a person is dead, जब एक इंसान मरता है, when that person was moving and sitting and talking, he was called Mr. X. जब वो उठता है, बैठता है, बात करता है, सुनता है तो मिस्टर एक्स ABC कहलाता है कुछ भी। The moment he is dead, जब वो जमीन छोड़ता है, मरता है, then he is called the body of Mr. X. तब वो कहते हैं ये मिस्टर एक्स का शरीर है। He is no more Mr. X. पर वो मिस्टर एक्स नहीं है, उसका शरीर है। He was Mr. X when the soul and body was together as a living soul. वो मिस्टर एक्स तब था जब उसके अंदर जान थी, आत्मा था, सभी इकट्ठी चीजें थी, तब वो मिस्टर एक्स था। So our soul is responsible to God. हमारी जान जो है वो जिम्मेदार है परमेश्वर के आगे जवाब देने के लिए। Our soul leaves the body and awaits the judgment until the day of resurrection. हमारी जान शरीर छोड़ती है और तब तक न्याय का इंतजार करती है जब तक परमेश्वर जो है न्याय ना करे। And God, according to God's plan, और देखिए परमेश्वर के योजना के मुताबिक because the sin has happened, because God knows that the sin has happened in this world, परमेश्वर जानता है कि इस जगत में बहुत सारा पाप गुनाह है। and we know that when sin happened in the book of Genesis, we read when sin happened, Adam and Eve, they had fallen into sin. और हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब में जब पाप आया, गुनाह आया है उत्पत्ति में, And we all who were born after that have been born in sin with sinful nature. और उसके बाद देखिए हम जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं हम सभी पाप में पैदा हो रहे हैं। By doing good works, our nature cannot change. हमारे अच्छे कामों से हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता। That is why Bible says we cannot be saved by doing good works. इसीलिए बाइबल कहती है हम अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार मुक्ति नहीं पाएंगे। The good works in this world, the people even who don't know God, they are doing good works. जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म। So that does not mean without knowing God they can go to heaven. इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई अच्छे कर्म कर रहे हैं और वो स्वर्ग जाएंगे। We cannot go to heaven unless we are reconciled and re-establish our relation with God. हम तब तक जो है स्वर्ग में नहीं जा सकते जब तक हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक ना कर लें। Our relation with God cannot happen without having a personal experience and personal relationship with God. जब तक हम अपना जो रिश्ता परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ लेते, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते, गुनाहों से तौबा नहीं कर लेते, तब तक हम उधार स्वर्ग में नहीं जाएंगे। That is why God has shown all these attributes to us. इसीलिए परमेश्वर ने अपने सारे गुणों को हम पर प्रकट किया। All these attributes are understood by us by the inspiration and teaching of the Holy Spirit. और देखिए ये सारे गुणों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया और हमें अगुवाई करके ये सारे गुण परमेश्वर ने बताए। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। That is why Jesus Christ was born by the power of the Holy Spirit. इसीलिए यीशु मसीह जो पैदा हुआ था वो पवित्र आत्मा के वसीले से पैदा हुआ था। The seed which was responsible for conception of Jesus Christ in the womb of Mary was through Holy Spirit. और देखिए उसने बहन मरियम ने जो वचन कबूल किया वो वचन उसके अंदर बीज के रूप में आ गया और जब उसने कलाम को कबूल किया पवित्र आत्मा के द्वारा वो बीज जो था वो पुत्र बन गया। He did not receive the seed from a man.
उसने वो बीज किसी आदम के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया था। We all are born with that process. हम सभी जो उस तरीके से ही पैदा हुए हैं, But Jesus Christ was born by the process of the seed of the Word of God. लेकिन यीशु नासरी जो है, यीशु मसीह जो है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वो पैदा हुआ है। Because Word of God is the seed that Mary received. देखिए जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है जो मरियम ने कबूल किया, But she conceived because she received it by faith. और उसके अंदर वो उसने बीज कैसे कबूल किया? क्योंकि उसने विश्वास के द्वारा वो बीज जो है कबूल किया। We can also receive the Word of God which has the seed by faith. हम भी परमेश्वर के उस बीज को कबूल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह? विश्वास के द्वारा हम उस बीज को ले सकते हैं। But we must know what is faith. लेकिन हमें पता होना चाहिए विश्वास क्या है। Just by saying, God, I believe you, and believe you, this is not only faith. अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर तुझ पर विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, ये काफी नहीं है। Our faith should show the action, fruit. हमारा विश्वास जो है वो कर्मों में भी नजर आना चाहिए। The faith which Mary had on the Word of God, जो बहन मरियम ने जो विश्वास पाया था, that faith was manifested by regeneration of a living cell in her womb. वो विश्वास उसका देखिए बाद में देखिए कर्म में भी नजर आया। वो उसके अंदर सेल बने और उसके अंदर वो बच्चा बना पेट में। The life which was in the seed regenerated a new life in the womb of Mary. देखिए मरियम के पेट के अंदर जो था वो बीज जो था वो उसके अंदर जीवन के अंदर एक और नया जीवन आ गया मरियम के पेट। Suppose Mary had received the Word of God by faith and then after that nothing happened. अगर मान लीजिए मरियम ने उस बीज को विश्वास के द्वारा कबूल किया होता लेकिन कुछ ना होता, then she will be like the ground in the parable of the sower of the seed, when the ground received the seed and the seed did not come out as a plant. तो ये फिर दृष्टांत लागू होना था कि जिस तरह एक बीज जो है सड़क पर गिरा लेकिन पथरीली जमीन होने के कारण वो जड़ नहीं पकड़ा, वो बीज जो है वो पैदा नहीं हो पाया, निकल नहीं पाया, बढ़ नहीं पाया। If Mary did not have faith, that seed of the Word of God will not germinate and she will not conceive. अगर मरियम विश्वास ना करती तो वो वचन जो था, वो बीज था, उसके अंदर कार्य नहीं करना था, वो आगे बढ़ना नहीं था। Faith is manifested in supernatural. देखिए विश्वास जो है वो एक चमत्कार के साथ लाता है। Because of the real faith she conceived. क्योंकि उसने जो था सच्चा बीज, सच्चा विश्वास पाया था। And that conception grew and became the full human body. और देखिए इसी कारण वो बीज जाके आगे बढ़ा और एक दिन उसने मनुष्य का शरीर ले लिया। And he was called Son of God. और देखिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। He was begotten of God, but he was born from the womb of Mary. देखिए वो परमेश्वर का पुत्र था इकलौता, लेकिन वो मरियम के पेट के अंदर पैदा हुआ। A person is never begotten from his mother. एक इंसान जो है वो इकलौता बच्चा नहीं हो सकता किसी भी। A person is born from the mother's womb. एक इंसान जो है अपनी माता के पेट से जो पैदा होता है, but he is begotten by the seed from the father. लेकिन वो अपने बाप के बीज से पैदा होता है, ना कि माँ के। In the case of Jesus Christ, the seed of the Father was the Word of God and the Holy Spirit. और देखिए मरियम के केस में जो बीज था मरियम के अंदर, वो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की ओर से था। This is the pattern how the Son of God and daughter of God is born. यही तरीका है बाइबल में कि किस तरह परमेश्वर के बेटे और बेटियां पैदा होते हैं। This is why Jesus said in John chapter 3 and verse 3. इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने यूहन्ना की अंजील और उसके 3 आयत में बोला है, A man should be, he told Nicodemus, one must be born again. उन्हें निकोदिमस को बोला यीशु नासरी ने कि एक मनुष्य जो है, One must be born of the water and the Spirit. उसको एक मनुष्य को आत्मा और जल से जन्म लेना जरूरी है। That is the new birth. ये नया जीवन है।
Unless a person is having a new birth, जब किसी इंसान ने जब तक नया जन्म नहीं लिया, Bible says he cannot see the kingdom of God. वो परमेश्वर पवित्र बाइबल कहती है वो मनुष्य तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। Listening to the word of God whole life, preaching the word of God whole life, doing things in the name of Christianity whole life has no meaning. सारी उम्र वचन को सुनना, सारी उम्र वचन का प्रचार करना ये काफी नहीं है हमारे लिए। Because that word which we receive, क्योंकि जो वचन हमने कबूल किया होता है, सुना होता है, that faith should be added to that word, उस वचन के साथ हमारा विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए। and that faith will put us in action. तब हमारा जो विश्वास है उस बीज को आगे कार्य में लाएगा, And that action will conceive a new life in us. और तब जाके देखिए विश्वास और उस वचन के साथ कार्य करेगा तो हमारे अंदर एक नया जीवन पैदा होगा, Which is a type of Jesus Christ born in us. इसी तरह यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होता है, Or we are born as a new person. और देखिए हम अब एक नए व्यक्ति पैदा हुए हैं, And that new person will be like Jesus Christ. और नया व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह है, And we will carry those attributes like Jesus Christ. और हम भी वही गुणों को लेके चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। Then only we become a child of God. तभी हम परमेश्वर के बेटे बन सकते हैं, Then only we are becoming the sons and daughters of God. तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। When we are born, so many children are born in this world. इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, They all become living soul. वो सभी जो हैं उनके सभी के अंदर जान है, They have the same combination, उनके पास सभी वही सब एक जैसा ही है, but all will not be saved. पर सभी बचे हुए नहीं है, Because their actions, क्योंकि उनके कार्य के द्वारा, because their faith, और क्योंकि उनके विश्वास the faith does not convert into the action. उनका विश्वास जो है वो कार्य में बदल नहीं पाता। They became a living soul. वो एक जिंदा शरीर जरूर होते हैं, जान जरूर होते They हैं, had the first birth in this world, उनका इस जमीन के ऊपर पहला जन्म जरूर होता है, but our first birth does not take us to heaven. हमारा पहला जन्म हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, Because in our first birth, our nature is corrupt. हमारा पहला जन्म जो है, हमारा पहला स्वभाव है वो दुष्ट है, गलत है, पाप के अधीन है। So our nature must change. हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। How does nature change? हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा? People say it's very difficult. The nature cannot change. How can it change? लोग कहते हैं वो स्वभाव कैसे बदल सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, स्वभाव नहीं This बदला is जा the सकता। statement of scientists and learned people of this world and all the management gurus. और ये देखिए ये ऐसे बयान किसके आते हैं, दुनिया के साइंसदानों की तरफ से, जो दुनिया के पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं। But this is not the message from Word of God. ये परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है ऐसा संदेश। He says your nature will change. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, It will not change unless you are born of water and spirit. और तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेते। Because our nature is a spiritual matter, not earthly matter. क्योंकि हमारा जो बदलाव है ये इस रूहानी विषय है, दुनियावी विषय नहीं है। Our earthly matter, this body and bones, is made of tomatoes and potatoes and rice. हमारा ये दुनियावी शरीर है, ये दुनियावी खाने से, आलू खाने से, प्याज टमाटर खाने से बना हुआ है दुनियावी शरीर। When we are born in this world, we are a small baby. जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम एक छोटा बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। Maybe 4 pound or 5 pound or something or 2 और kilos or देखिए 3 कितना kilos. होगा, 4 पाउंड या 5 पाउंड होगा, और कितना होगा 4-5 A baby grows that much inside the mother. और देखिए बच्चा जो है माँ के अंदर बढ़ता है, But how will the baby grow? लेकिन बच्चा कैसे बढ़ता है? When he is born outside the mother's womb, how will he grow? देखिए जब वो पैदा होता है तो देखिए फिर कैसा बढ़ता है। He needs the physical food. उसे दुनियावी खाने की जरूरत है जब वो माँ के पेट से बाहर आता है। Starting from the milk and cereal and biscuit. और देखिए शुरुआत उसकी देखिए दूध बिस्किट के द्वारा होती है, And as he starts growing, और देखिए जैसे वो बढ़ना शुरू होता है the parents are watching him. और माँ बाप उसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करते And हैं, slowly they change his food. और धीरे धीरे माँ बाप उसका खाना बदलते हैं। He starts eating other foods which are hard food and and solid food for the growth. और धीरे धीरे देखिए उसको है धीरे धीरे खाने में सख्त खाना और
मजबूत खाना देना शुरू कर देते हैं धीरे And धीरे। when you look at the same child after 10, 12, 15, 16 years, he is a full grown man or a woman. देखिए आप जब 10, 11, 12 सालों बाद आप उसी बच्चे को देखेंगे तो आप देखेंगे वो कितना बड़ा हुआ होता है। How has he grown physically? वो दुनियावी शारीरिक तौर पे कैसे बढ़ा? Because he's been eating the food coming from the ground. क्योंकि उसने जो जमीन के ऊपर जो भी खाना पैदा होता है उसने खाया। We all are a part of this dust earth. हम सभी जो हैं इस मिट्टी का हिस्सा हैं। Our body grows because of the dust. हमारा शरीर बढ़ता है और इस मिट्टी के द्वारा। The things which are generated, which are grown in this earth, in this dust, we eat that, and that's how our body grows. इस जमीन के ऊपर जो भी चीज पैदा होती है हम उसे खाते हैं और हमारा शरीर बढ़ता है। And one day, when the time is finished for us, देखिए एक दिन जब हमारा समय इस जमीन के ऊपर खत्म हो जाएगा, this body which is made from the dust, जो ये शरीर मिट्टी के द्वारा पैदा हुआ बना था, which has grown from this small to a big man, जो एक छोटे बच्चे से इतना बड़ा मनुष्य बना था हमारा शरीर, because all the dust coming back from the earth we are eating every day. क्योंकि हमने जो भी इस जमीन के ऊपर पैदा हुआ हमने रोजाना उसे खाया। So our portion of the earth is becoming every day in the form of the body, it is increasing. और देखिए हमारा जो ये मिट्टी का हिस्सा है जो शरीर है वो लगातार बढ़ा है, बढ़ता है। And the part of the earth that we are, we must go back from where we are coming. देखिए जो जमीन से पैदा हुआ है वो वापस जमीन में ही चला जाएगा हमारा That शरीर। is why Bible says the flesh and blood will not inherit the kingdom of heaven. इसलिए बाइबल कहती है हड्ड और मांस और शरीर जो स्वर्ग में अधिकारी नहीं हो सकते। That is why Jesus said we must be born again. इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हमारा नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। Our born again does not have a physical connection. It has got a spiritual connection. हमारा जो दूसरी बार जन्म लेना वो शारीरिक नहीं है, वो रूहानी है। When we become a spiritual connection with God, then our nature changes. जब हमारा रूहानी तौर पे नया जीवन होता है तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ता है। Then the same nature develops in us, which was the nature of Jesus Christ. देखिए हमारे अंदर फिर वही स्वभाव पैदा होता है, बनता है जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। And then when we obey the commandments and ordinance of God, तब जाके हम परमेश्वर के हुक्मों के और परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। then the small Jesus which is born in us, तब हमारे दिलों हृदयों में प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है। then it starts growing within us. तब वो हमारे अंदर और प्रभु बढ़ना शुरू होता है। And when do we become perfect? और देखिए कब हम जो है वो संपूर्ण होते हैं, When we attain the stature, the length and breadth of Jesus Christ in our life. जब हम प्रभु यीशु मसीह के कद काठी के पूरी तरह उसके मुताबिक हो जाते हैं तब हम संपूर्ण हो जाते हैं। Not our physical size, but our spiritual size must grow. हमारा जो कद काठी है दुनियावी शारीरिक की बात नहीं कर रहे, रूहानी तौर पे हमारा कद काठी यीशु मसीह के मुताबिक होना चाहिए। As a physical parent, when our child is not growing, even we feed him the best of the food, we get worried. देखिए दुनियावी माँ बाप भी अगर उनका बच्चा अगर बढ़ नहीं रहा तो फिर भी उसे खाना देना छोड़ते नहीं है, देते रहते हैं। So is it not the case of concern if we are not growing spiritually, our heavenly Father is worried? और क्या ये हमारा देखिए रूहानी नहीं जुड़ता कि जब हमारा रूहानी भी ग्रोथ नहीं हो रही, बढ़ नहीं पा रहे, तब भी परमेश्वर हमें रूहानी खाना देना थोड़ी छोड़ देता है। Maybe our worldly father is giving the best food, but that food may be nakli, may not be very good quality. देखिए हो सकता है दुनियावी हमारा बाप जो खाना दे रहा है वो प्योर ना हो, वो मिलावट वाला हो सकता है। That is why my growth is not very good. तभी तो मेरा जो है दुनियावी नहीं अच्छी तरीके से बढ़ पा रहा हूँ मैं। But my heavenly Father does not give me adulterated food. मेरा स्वर्गीय पिता जो है वो मेरे को मिलावट वाला दूषित और बुरा खाना नहीं देता। Word of God's food is pure and perfect. परमेश्वर का खाना वचन जो है वो संपूर्ण है, वो परफेक्ट है, शुद्ध है, प्योर है। There is no reason there will be no growth. देखिए ये हो ही नहीं सकता कि आपकी फिर ग्रोथ ना हो। There can only be one reason there is no growth. एक ही कारण है फिर भी आपकी अगर ग्रोथ नहीं हो रही।
my faith and my heart has not received the seed properly. मेरे दिल ने जो है वो परमेश्वर के उस खाने को, वचन को दिल से कबूल नहीं किया हुआ है। Because the life is in the seed. क्योंकि जो खाने की जो जिंदगी है, When the ground receives the seed, जब वो देखिए इस जमीन जो है, ये बीज जब लेती है, the life is not in the ground. जिंदगी जो है वो जमीन उस मिट्टी में नहीं होती, वो बीज में होती है। The life is in the seed. देखिए जिंदगी जो जीवन है वो बीज में होता है, मिट्टी में नहीं होता। The ground only gives the condition, the proper protection and condition to that seed. मिट्टी का तो ये काम है कि उस बीज को जो माहौल चाहिए, धूप, मिट्टी, पानी, वो सिर्फ वो उसको उपलब्ध करवाता है मिट्टी। The ground should be moist enough, soft enough, rich enough to receive the seed for the life to grow out. देखिए मिट्टी जो है उस बीज को नरम, पानी, सिलापन देती है ताकि वो बीज जो है उस माहौल में बढ़ पाए। Likewise, our heart should be soft enough, faith should be good enough to receive the seed of the word of God, then only the word will grow in our life. इसी तरह हमारा जो दिल है ये मिट्टी है, जब परमेश्वर का वचन इसमें आता है तो हमारे दिल को नरम होना चाहिए, हलीम होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, ताकि वो बीज जो है वो बढ़ पाए। So we should have that conscience, we should have that nature, we should have that faith to receive the seed so that the life will be germinated. तो हमारा जो स्वभाव है वो सीरियस होना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है, बीज है, हमारे जीवन में आए और आगे बढ़ पाए। हमें उसके ऊपर सीरियस होना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए। God has done everything for us, brethren. परमेश्वर जो हमारे लिए कर सकता था, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। He has once for all given his blood for our salvation. उसने अपना पवित्र खून भी हमारे लिए जो है सलीब पर बहा दिया। He is not going to send his son once again to be crucified. अब वो दोबारा फिर से अपने पुत्र को सलीब पर चढ़ने के लिए नहीं भेज रहा। His plan was existing before the foundation of the world. देखिए उसकी योजना जो थी परमेश्वर की, वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना के रखी हुई है। And when the time came, he completed his plan. देखिए जब समय पूरा होता है तो परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर देता है। And through his plan, those who believe his plan, those who become a part of his plan, their sins are washed away and they became a new creature. जो भी परमेश्वर की इस योजना को कबूल करते हैं, इस योजना पर विश्वास करते हैं, इस योजना पर चलते हैं, परमेश्वर उन लोगों के गुनाहों को धो देता है, साफ कर देता है। Our salvation is a spiritual matter, brother. हमारा जो मुक्ति उद्धार है वो रूहानी विषय है मेरे भाई बहनों, ये जिस्मानी विषय नहीं है। How we look like, हम कैसे दिखेंगे, what is our color, हमारा रंग कैसा होगा, and how impressive we look, हमारा उठना बैठना दिखना कैसा होगा, how physically rich we are and educated we are. हम किस तरह दुनियावी दिखने वाले होंगे, हम कितना पढ़े लिखे होंगे, कितना अमीर होंगे, This does not qualify us for heaven. ये हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। The most beautiful person on this earth, इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति जो भी है, the most educated person of the earth, इस दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है, the most rich person of this earth, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो है, the moment his soul leaves his body, जब उसका उसकी जान उसके शरीर को छोड़ेगी, on fourth day his body will start stinking. चौथे दिन जो है हमारा शरीर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। The person who used to take shower in fragrances and all the flowers and every luxuries of life, जो व्यक्ति इस जमीन पे रहते हुए अपने शरीर को रोज धोता है, नहाता है, बहुत सारे परफ्यूम लगाता है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता है, जो व्यक्ति the moment the soul has left, जिस दिन जान निकलती है उस शरीर में से, he is left as a dead body. वो एक मृत्यु शरीर छोड़ के चली जाती है। He goes to the mud, he goes to the same dust. और देखिए वो वापस से शरीर उसी मिट्टी में चला जाता है जिस मिट्टी से निकला था। He may leave big cars and mansions and houses and bank balances behind him. देखिए वो पीछे क्या छोड़ जाता है, बढ़िया कारें, महंगी कारें
But बहुत he is बड़ा just बैंक occupying, बैलेंस, he is just occupying a small area under the ground. देखिए वो बहुत सारा बैंक बैलेंस, बहुत सारी कारें छोड़ जाता है, लेकिन जब दफनाया जाता है कितनी छोटी जगह पे दफनाया जाता है। So it is very important while we are still living souls, इसलिए हमें ये बहुत हमारे लिए जरूरी है कि अब हम जो एक जीवित हैं अभी, we must have that supernatural experience with our Lord in our life. हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ रूहानी आत्मक जो है तजर्बा होना चाहिए। And this is not an imaginary experience, brethren. और देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है हमारे लिए, That I can simply say, oh, I have the experience with Jesus Christ. ये नहीं है कि मैं इतना कह दूं कि हाँ मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ जाति तजर्बा है। Brethren, this is a new birth. मेरे भाई और बहनों ये एक नया जीवन है। When a child is born in a family, जब एक बच्चा जो है अपने परिवार में पैदा होता है, a family, the father and mother have so many ways to prove that he is my child and he is born on this day, this time in this hospital. और देखिए माँ बाप कितने कागज, कितने प्रूफ लेते हैं दिखाने के लिए कि ये हमारा ही बच्चा है। If somebody says to a young couple, have you got children? अगर कोई पूछे नौजवान जोड़े से कि तुम्हारे पास कोई बच्चा है, And they will say, yeah, I have got 2 children. और कहें कि हाँ हमारे पास 2 बच्चे हैं, Can you establish those 2 children? Can you show those 2 children? Can you give any documentation? और देखिए आप कहेंगे कि आप हमें सबूत दे सकते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, कोई कागज जहाँ उन बच्चों को दिखा सकते हैं आप? They can bring 2 children from neighborhood and say, these are my children. देखिए वो पड़ोसी के 2 बच्चे पकड़ के अगर ले आए और कहें ये है हमारे 2 बच्चे, Somebody may believe who doesn't know them, और देखिए कोई मान भी लेगा कि हाँ भाई ये होंगे, but in reality this is a fake story. लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, ये उनके बच्चे नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी उन्होंने झूठी बनाई है। A child cannot be a child of a young couple unless he is born through them and born in that family. देखिए एक बच्चा जो है वो उस परिवार में जो पैदा होगा तब तक नहीं पैदा हो सकता जब तक वो पैदा ना करे उस बच्चे को। And when the child grows up, देखिए जब वो बच्चा बड़ा होगा, he cannot call anybody walking on the street, hello daddy. देखिए वो बच्चा सड़क पे जाते हर किसी को नहीं बोल देगा वो मेरे पापा, मेरे पिताजी। So that person will ignore him 1 time or 2 times. वो व्यक्ति 1 या 2 या 3 बार उस बात को इग्नोर कर देगा। Still if the child is following, hello daddy. और अगर वो बच्चा लगातार किसी अनजान व्यक्ति को बोले हे मेरे पिता, हे मेरे बाप, that person will give him a strange look. वो व्यक्ति बड़े अजीब तरीके से उस बच्चे की ओर देखेगा। He says, are you okay? Because I'm not your daddy. वो व्यक्ति कहेगा मेरे बच्चे तुम ठीक हो कि क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो। Still he will say, no, I have to call you daddy, you are my daddy. लेकिन अगर बच्चा ये कहे नहीं मैंने तुम्हें आपको पिताजी कहना है, मैं पिता मानता हूँ आपको, Then he will say, how do you establish you are my child and how do I establish you are my son? तुम कैसे कह सकते हो कि भाई तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम कैसे कह सकते हो? But if he is talking to his own father, लेकिन जब वो अपने असली बाप से बात करेगा, he will still use the same words और वही शब्द वो अपने बाप के लिए अगर इस्तेमाल करेगा, and he may be still following him on the road, और वो अपने बाप का पीछा करे अगर फिर, but the daddy will not answer him like the stranger. लेकिन उसका असली बाप जो है वह उस अजनबी की तरह उत्तर नहीं देगा। What is the difference? दोनों में फर्क क्या है? Because this child is born in the family of that father. क्योंकि ये बच्चा सचमुच उसी बाप, उसी परिवार में पैदा हुआ है। He is come from the seed of that father and that mother's womb. क्योंकि वो बच्चा उसी बाप के बीज के द्वारा पैदा हुआ है। So if I start calling, any stranger started calling God his father, देखिए अगर मैं किसी को भी कहने लग जाऊं कि ये मेरा पिता परमेश्वर है, if I don't know who is God, who is Jesus, मैं नहीं जानता कि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, and I start simply praying, my God, my Father in heaven, my Jesus, and I pray to Jesus, my Father in heaven. If I start reciting these words, अगर मैं ऐसे प्रार्थना करने लग जाऊं कि हे मेरे पिता, हे मेरे यीशु जो परमेश्वर है,
then God will give me a very strange look. और परमेश्वर उसी तरह हमें बड़े अजीब तरीके से देखेगा। कहेगा, leave me alone, I don't know you, who you are. यीशु मसीह हमें कहेगा, मुझे छोड़ो, मैं नहीं तुम्हें जानता, तुम कौन हो, Because you are not born in my family. क्योंकि तुम मेरे परिवार में पैदा हुए नहीं हो। If I tell him, no God, I came in this world because of you, you gave me birth. लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं परमेश्वर, हम तो आपके द्वारा इस जगत में आए हैं, आपके द्वारा पैदा हुए हैं, But God will say, everybody, every life that has come in this world, they all come from God. और देखिए परमेश्वर कहेगा इस जगत में जो कुछ भी है, जीवन है, वो मेरे द्वारा ही आया है, Because all the life come from God. क्योंकि सभी जीवन परमेश्वर की तरफ से आए हैं। All the good people and all the people who become criminals, they were all born, they got the life from God. देखिए अच्छे लोग, बुरे लोग, कातिल लोग, ये सभी जो हैं परमेश्वर के जीवन से आए हैं। When Cain was born to Eve and she said, I have got a man, I've got a child from God. देखिए यहाँ तक जब काइन भी पैदा होता है तो देखिए हवा क्या कहती है, मैंने यहोवा की कृपा से पुरुष पाया। Many people try to establish the fact, those who don't know Genesis correctly. बहुत सारे लोग जो हैं वो उत्पत्ति उसको नहीं जानते, उत्पत्ति को। Those who are not ready to ignore, those who have no revelation that whose child Cain was. देखिए बहुत सारे लोगों के पास ये प्रकाश नहीं है कि काइन कौन था, किससे पैदा हुआ। They still think that Cain was also born from his father Adam. और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काइन भी जो है वो आदम से पैदा हुआ है। But we know to whom we have, it has been revealed from where Cain came. देखिए परमेश्वर ने हम पे प्रकट किया हुआ है कि काइन किसके द्वारा पैदा हुआ। But the woman, when she said, I have got a man from God, she's right. देखिए जब हवा ने कहा कि मैंने परमेश्वर के द्वारा पुरुष पाया है, वो ठीक कह रही है। Because all the life come from God. क्योंकि सभी जीवन परमेश्वर की तरफ से आते हैं। Cain was not a dead man, he was a living man. काइन कोई मृत्यु नहीं पैदा हुआ था, वो एक जीवित बच्चा पैदा हुआ था। And all life, giver of all life is God. हम जो वही हमें जीवन देता है वही ले लेता है। Similarly, millions and trillions of people who are born on this earth, the life into them came from God. दुनिया में करोड़ों अरबों जितने भी लोग हैं, उन सबका जो जीवन है वो परमेश्वर से ही आया है। But God is not their father. पर परमेश्वर उनका पिता नहीं है, Because God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। They are physically born here in sin देखिए वो दुनियावी तरीके से पैदा हुए हैं और पाप कर रहे हैं, and carrying on the nature of sin. और देखिए दुनियावी जो गुनाह पाप है साथ लेके चल रहे हैं। They are in the broken relationship with Heavenly Father. उनका रिश्ता आत्मिक परमेश्वर के साथ, पिता के साथ टूटा हुआ है। So God is no more their father, not their father at all. और परमेश्वर अब इसलिए परमेश्वर उनका पिता नहीं है, परमेश्वर नहीं है। Bible says Jesus was addressing Pharisees that you are from your father, the devil. देखिए यीशु मसीह सामरी लोगों को क्या कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। Because those who don't belong to God, their fatherhood, their relationship is with devil. Devil is their father. देखिए जो भी परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, वो शैतान से पैदा हुए हैं, शैतान उनका पिता है। They may be living souls, वो जिंदा जरूर होंगे, but like Cain, Lucifer was the father of Cain. देखिए काइन की तरह, जिस तरह काइन का पिता लूसीफर शैतान था, उसी तरह उनके पिता जो है शैतान है। That's why millions of people who are living souls in this world, the life in them came from God. देखिए इसीलिए दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, उनके अंदर जो जीवन है वो परमेश्वर से आया है। But they cannot call God their father. लेकिन वो परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते। And God will not claim them as his children. और परमेश्वर भी उन्हें अपने बच्चे होने का दावा नहीं करता। So when will God accept them as children? परमेश्वर कब आप दावा करता है अपने बच्चे होने का? When they can claim that God is their father. जब वो बच्चे दावा करते हैं कि ये यीशु हमारा परमेश्वर पिता है। When they are born again. जब वो दोबारा नए सिरे से जन्म लिए होते हैं। That is the only instance that we can call God our father. सिर्फ यही एक बाइबल में तरीका पाया जाता है कि तब हम पिता परमेश्वर को अपना बाप अब्बा परमेश्वर कह सकते हैं। In the New Testament, the first time the word father was used for God when Jesus was teaching the prayer to his disciples.
और देखिए नए नियम में पहली बार परमेश्वर को पिता शब्द जो इस्तेमाल हुआ है तब हुआ जब पुत्र यीशु पैदा हुआ और उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है। Because the child is talking to his spiritual father. देखिए क्योंकि शरीर में पैदा हुआ बच्चा जो है वो अपने रूहानी पिता से बात कर रहा है। Why he became the child? How he became the child of that father? देखिए वो किस तरह बच्चा बना, किस तरह अपने बाप का बेटा बना। Because he was born of the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। That is why unless we are born of the Holy Spirit, we cannot establish our relationship to God and call him the Father. इसी तरह जब तक हम आत्मा से जब तक नए सिरे से ना जन्मे हम अपना रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते, बना सकते। And brethren, we have to respect the Holy Spirit. हे मेरे प्यारे भाइयों, हमें पवित्र आत्मा की इज्जत करनी है। Bible says all the sins can be forgiven. बाइबल कहती है कि मनुष्य के सारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, But there is one sin which will not be forgiven. सिर्फ एक ही गुनाह पाप है जो माफ नहीं किया जाएगा, Neither in this world nor in the world to come. ना ही इस संसार में ना ही उस संसार में। We like to read one or two scriptures and then we will finish. हम एक दो आयतें पढ़ेंगे और उसके द्वारा जो है सभा हम समाप्त करेंगे। Let us read Matthew chapter 12. हम मत्ती की अंजील और उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील और 12 अध्याय, And we will read verse 32. और हम 32 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 12 अध्याय 32 आयत पढ़ेंगे हम। We will rather read verse 31 and 32 both. और देखिए हम 31 और 32 दोनों आयतें पढ़ेंगे To get the full meaning what the word of God says here. और हम इससे पूरा जो है मतलब निकालेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। Here Jesus is talking in his own words. देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम के द्वारा बात कर रहा है, And he is talking to those people who are putting allegation against Jesus. What against his works they are putting allegations. देखिए यीशु मसीह जी उनसे बात कर रहा है जो उस पर दोष लगा रहे थे, उसके काम पर और उस पर दोष लगा रहे थे। यीशु उनसे बात कर रहा है He is telling those for such people. और देखिए प्रभु उससे बात कर रहा है। Verse 31 and 32 I am reading. और 31 और 32 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। Therefore, Jesus is talking, therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven to him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven to him in this age or in the age to come. और देखिए प्रभु 31 और 32 आयत में प्रभु कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। आमीन। Amen. Amen. And in the same chapter, if we read the verse 24, और इसी ही कलाम में हम 24 आयत अगर पढ़ें, now here the context is that Jesus is doing great works and miraculous work and supernatural works in front of people, and they were marveling and they were surprised, but some were not believing that this is in a good spirit. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने बहुत सारे मौजे चमत्कार किए और कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। In verse 24 he says, देखिए 24 आयत क्या कहती है। Now when the Pharisees heard it, they said, this fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of demons. परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। आमीन। Now you see, this is the faith of the Pharisees. देखिए ये फारिसियों का ऐसा विश्वास था। देखिए They are learned people, religious people,
God-knowing people, and this is how they are talking. और देखिए ये प्रभु को परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, कलाम सीखने वाले लोग थे, और देखिए ये कैसी बात कर रहे हैं। How devil has taken over the mind of these religious people. देखिए किस तरह शैतान जो है धर्मी लोगों को इस्तेमाल कर लेता है। They are putting allegation on Son of God. और देखिए इन्होंने प्रभु के पुत्र यीशु पर देखिए दोष लगाया। They did not recognize him. देखिए इन्होंने उसको कबूल नहीं किया, They did not honor him. इन्होंने उसकी इज्जत नहीं की, And they also dishonored the spirit which was upon Jesus. और देखिए इन्होंने उल्टा पवित्र आत्मा की निंदा की जो यीशु के अंदर था, पवित्र आत्मा। And they were claiming he is not doing these things by the spirit of God but the spirit of devil. और देखिए कैसा दोष लगा रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा के वसीले से नहीं लेकिन शैतान के वसीले से बदबुएं निकालता है। In reply to these people, only in verse 31 and 32, Jesus is giving that answer. देखिए इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको 31 और 32 आयत में ये उत्तर दिया। He is telling them that as a man you can talk many bad things about me. यीशु ने कहने का मतलब ये था कि इस शरीर मनुष्य के तौर पे तुम इस शरीर का विरोध जो करना है कर लो। In the human way it may be forgiven. तुम्हें मनुष्य के रूप में मैं इसको माफ कर दूंगा। But if you are condemning and dishonoring the Spirit of God, this sin will never be forgiven. लेकिन जो मेरे इस शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी निंदा ना इस युग में ना आने वाले युग में माफ की जाएगी। Now, when can a person commit a sin against the Holy Spirit? जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप करता है, Only a person who has been able to recognize what is the Holy Spirit. वो देखिए वही जो है दोबारा रिश्ता जोड़ सकता है जो ये जानता है कि पवित्र आत्मा क्या है। We are reading one more scripture here, Luke chapter 12. हम एक और हवाला पढ़ने जा रहे हैं लूका की अंजील, Because it is always good to read one or two scriptures when we want to establish some fact. देखिए ये जरूरी होता है कि हम 2-3 हवाले पढ़ें, उससे हमारा जो है विषय जो है वो क्लियर हो जाता है। Luke chapter 12 and verse 10. लूका की अंजील और उसका 12 आयत, लूक चैप्टर 12। Luke chapter 12 and verse 10. हाँ जी, लूका की अंजील और उसका 12 अध्याय और उसकी 10 आयत पढ़ने जा रहे हैं हम। 12 Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। So we know this, the Bible is very clear, and Jesus himself is telling that any sin, any disrespect, any stubbornness, any rejection to the Holy Spirit will not be tolerated by God. देखिए पवित्र शास्त्र हमें कितना साफ बताता है कि कोई भी निंदा और जो है बुराई पवित्र आत्मा के खिलाफ की जाएगी वो इस युग में ना आने वाले युग में माफ की जाएगी। This is a very large subject, but today we don't have much time to talk about it. We'll talk another time. I'm only reading the scriptures for us to collect some context as to what the subject is. देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, हमारे पास समय नहीं है और प्रभु ने चाहा आने वाले समय में ये पूरा फिर हम संदेश लेंगे, लेकिन अभी Because this is a very, very important subject for believers. क्योंकि ये विश्वासियों के लिए बहुत बहुत जरूरी विषय है। This is not a subject for unbelievers. ये अनविश्वासियों के लिए ये विषय नहीं है, Because unbeliever does not know what is Holy Spirit. क्योंकि जो अनविश्वासी हैं उन्हें तो पता ही नहीं है पवित्र आत्मा क्या है। So how can unbeliever do any sin against Holy Spirit? और देखिए फिर किस तरह जो है अनविश्वासी जो हैं वो गुनाह पवित्र आत्मा के कैसे जानेंगे गुनाह करते हैं। I am punishable by law only when I know what I should do as per law. देखिए मैं तब सजा का हकदार हूँ जब मैं उस विषय को कलाम को कानून को जानता हूँ। If I don't know the rule, how can I break the rule? जब मैं कानून को ही नहीं जानता हूँ तो मैं फिर कैसे कानून को तोड़ूंगा। So if I don't know what is Holy Spirit, then how can I sin against Holy Spirit? जब मैं देखिए पवित्र आत्मा को ही नहीं जानता तो मैं कैसे जानूंगा कि मैं पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह कर रहा हूँ।
We are reading one more scripture here briefly. और आज हम और डिटेल में जानने के लिए एक और आयत पढ़ेंगे। It is making here more clear what is he talking about. देखिए परमेश्वर ने इस आयत के द्वारा और अच्छे तरीके से मतलब बयान किया है समझने के लिए। Now here Paul is talking to Christians. देखिए यहाँ संत पुलूस जो है वो मसीहों से बात कर रहा है। And those Christians are a mixture of Jews and Gentiles both, because this is the book of Hebrews. और देखिए वहाँ पे जो विश्वासी हैं वो यहूदी अन्य जाति हैं सब मिक्स हैं विश्वासी। He is reading, I will read from verse 1 until verse 6. Verse 1 to 6, Hebrews chapter 6. और And please follow this reading slowly, very carefully. I'm reading from verse 1 to verse 6, Hebrews chapter 6. Therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of the faith toward God, of the doctrine of baptism, of laying on the hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. So he says, yes, this is good to do all this if God permits you. But coming to the verse 4, he is drawing their attention now. It is impossible. Please pay attention now very carefully. It is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Read brother, verse 1 to 6. इब्रानिया और 6 अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आमीन। Amen. Amen. Now, brethren, भाइयों, here the Paul is talking in verse 1, 2, and 3 about the basic principles of Christianity. देखिए यहाँ पे संत पौलुस जो है वो 1, 2, 3 आयत में जो मसीहत के विश्वास के बुनियादी नियम कानून असूल हैं उसके बारे में बात करता है। जब हम मसीहत की तरफ बढ़कर आते हैं, अन्य जातियों से निकल के आते हैं, when we come out from them, when we come out of the Gentiles, जब देखिए हम अन्य जातियों में से निकल कर शुरुआती और नए मसीह बनते हैं, हम विश्वास में आते हैं, like Acts chapter 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के मुताबिक। but what happened there? They believed the word of God, they repented, और देखिए प्रेरितों के काम 2 के मुताबिक जिन्होंने तौबा की, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, and then they took the baptism and they had the laying of hands and receiving of the Holy Spirit and blessing. और देखिए जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। And he says in the verse 3, this we will do if God permits. और देखिए 3 आयत में वो प्रभु का दास कहता है कि अगर परमेश्वर चाहे तो हम ये करेंगे। Yes, this is good to do this to be into the family of God. देखिए ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर चाहे तो फिर से ये बुनियादी तलीमों का बात कर सकते हैं। But in verse 4, 5 and 6 he is giving a great warning. देखिए लेकिन वो 4वीं, 5वीं, 6वीं आयत में एक चेतावनी दे रहा है बहुत बड़ी।
He says it is impossible for those people, those who were enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Ghost. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई या स्वर्गीय वरदान को चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। It is impossible for them to leave the Holy Spirit and go against the Holy Spirit. देखिए, उनके लिए तो ये नामुमकिन है कि अब पवित्र आत्मा के खिलाफ जाना, पवित्र आत्मा के खिलाफ कार्य करना। Verse 5 he says, because they have tasted the good word of God and the power of the age to come. पांचवी आयत में, क्योंकि वो परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। But now he says, now comes the dangerous warning in verse 6. लेकिन देखिए 6 आयत में वो एक बड़ी चेतावनी, भयंकर चेतावनी दे रहा है। They have done all the basic things and they have tasted the good word of God and they have received and recognized the Holy Ghost. देखिए, जो परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, and they know what is Holy Ghost. और जब वो जान गए हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, and they know, by knowing Holy Ghost means they know who is God. जब वो पवित्र आत्मा जान गए हैं तो वो जान गए हैं कि They know what is the plan of salvation. फिर वो समझ गए हैं कि उद्धार की योजना क्या है। They know who is Jesus. वो जान गए हैं कि यीशु मसीह कौन है। They know what is word of God. जो जान गए हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। They know what type of life I must live. उनको पता लग गया कि अब हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। In verse number 6 he says, और देखिए 6 आयत में प्रभु का दास कहता है, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again themselves the Son of God and put him to an open shame. यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। Now the point here is, we read those verses from Luke and from Matthew. देखिए, हमारा लूका की अंजील और इस आयतों को पढ़ने का क्या विषय कारण है। He is telling us, one who sins against the Holy Spirit, his sin will not be forgiven. देखिए, इस विषय का मतलब, कलाम का मतलब ये है कि जो गुनाह पवित्र आत्मा के खिलाफ किया जाएगा वो माफ नहीं होगा। That means when a person can sin against Holy Spirit, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह करता है, when can he sin against the Holy Ghost? और जब देखिए वो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करता है, Only when he has understood and recognized the Holy Ghost. उसी वक्त उसको ये तौबा करनी होती है, कबूल करना होता है पवित्र He आत्मा has को। already recognized Holy Ghost, and then if he rejects it, और देखिए वो ऑलरेडी जो है पवित्र आत्मा को जान चुका है, पा चुका है, वो फिर पाप करे, now there is no hope for that person. फिर उसके लिए नहीं आस कोई, फिर नहीं उसके Because he is once again crucifying the Lord on the cross and putting him to shame. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को फिर दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं जानकर भी। But God will not allow his son to be crucified again. देखिए, लेकिन पिता परमेश्वर ने ये इजाजत नहीं दी हुई है कि उसके पुत्र को दोबारा फिर से स्लीप पर चढ़ाया जाए। God has done it once for all. परमेश्वर ने सिर्फ एक बार हमारे लिए ये कर दिया है। God has given us salvation by grace. परमेश्वर ने जो हमें उद्धार मुक्ति दी है वो अपने अनुग्रह के द्वारा दी है। He has taken us out from the curse of the old law. परमेश्वर हमें पुरानी शरह से बाहर निकाल के ले आया श्रापित। Because we can never be saved by the old law. क्योंकि हम कोई भी जो है वो शरह के द्वारा नहीं बच सकते थे। The old law did not bring salvation. देखिए, पुरानी जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो शरह है वो हमें उद्धार मुक्ति नहीं दे सकती थी। It was waiting for the New Testament sacrifice of Jesus Christ. वो देखिए, वो शरह जो थी वो नए नियम का इंतजार कर रही थी, कब प्रभु परमेश्वर आए वो कुर्बानी दे। Even the sins of the Old Testament saints were waiting and waiting until Jesus was crucified. देखिए, पुराने नियम में जो गुनाह पाप हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब यीशु आए और सलीब पे कुर्बान होए और ये माफ किए जाएं। Because their sins were covered and the price was not paid. क्योंकि उनके गुनाह जो थे वो साफ नहीं होते थे लेकिन ढके जाते थे सिर्फ।
price was only paid through the blood of Jesus Christ. उन गुनाहों की जो कीमत है वो सिर्फ सलीब पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा चुकाई गई। Likewise, today when we believed about the blood of Jesus Christ, our sins are washed away straightway. जिस तरह आज भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया तो हमारे गुनाह साफ हो जाते हैं And we receive the gift of the Holy Ghost. और हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। Now, having received and that gift of Holy Ghost and having known the Holy Ghost, और तब हम पवित्र आत्मा के दान पाते हैं और हमें पवित्र आत्मा का स्वाद पता चलता है। now if we fall, अगर हम फिर भी गिर जाएं, this is the danger. ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। This is the sin if we commit against the Holy Ghost. ये वो पाप है जो हम पवित्र आत्मा के खिलाफ करते हैं। We know who is Jesus. हम जानते थे कि प्रभु यीशु कौन We है, know who is God. हम जानते हैं कि प्रभु कौन है, We know who is Holy Spirit. हम जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है, We know what is plan of salvation. हम जानते हैं परमेश्वर के हम उद्धार की योजना क्या है, We know the value of blood of Jesus हम Christ. जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की वैल्यू क्या है। God has accepted us as His child. परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम एक बच्चे की तरह उसको कबूल करें। Now, if we become stubborn and continue to willfully sin, then there is no hope for us. अगर हम लड़खड़ाते हैं और जानबूझकर गलती और गुनाह करते हैं, So the sin against the Holy Ghost is देखिए जो पाप है पवित्र आत्मा के खिलाफ, having known and recognized the Holy Ghost. देखिए वो ये है कि पवित्र आत्मा को ना पहचानना। If we continuously and persistently refute and reject the word of God, हम फिर भी जानकर भी लगातार परमेश्वर के वचन को ठुकराते जाते हैं and under the influence of some wrong teaching once again from where we came out, और जिस गलत तलीमों से हम निकल के आए थे दोबारा फिर से उन गलत तलीमों में चले जाते हैं trying to go back again and reject the truth और देखिए फिर गलत तलीमों में जाकर सच्चाई को हम छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर and देते reject हैं the promises of God और परमेश्वर के वादे को हम रिजेक्ट कर देते हैं, फिर and reject His word, परमेश्वर के कलाम को हम रिजेक्ट करते हैं, then we dishonor the Holy Ghost. तब देखिए हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर रहे हैं, निंदा कर And रहे by हैं। chance, if we leave this world in that condition, और याद रखें अगर हम इसी तरह इसी गुनाह में हम अगर जमीन छोड़ गए, our sin is not forgiven. हमारे पाप हमारे साथ ही बने हुए हैं, माफ नहीं हुए थे। And some people will think, okay, maybe when we go to the white throne judgment, we ask for forgiveness. जो अगर लोग सोचे कि जब हम सफेद सिंहासन वाले न्याय में जाएंगे शायद तब हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, Or after leaving this world, I will repent. जब मैं ये जगत छोड़ूंगा तब मैं अपने गुनाहों को कबूल कर लूंगा। Bible is very, very clear, brother. परमेश्वर के पवित्र बाइबल बिल्कुल साफ बताती है। Once we have received the truth, एक बार जब हमने सत्य पा लिया, we cannot reject the truth. फिर हम सत्य को ठुकरा नहीं सकते, Because the value for this truth is the blood of Jesus Christ. क्योंकि उस सत्य का जो मूल्य है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। If we reject it, we put the blood of Jesus Christ to shame. देखिए अगर हम ठुकराते हैं तो हम परमेश्वर के उस खून की जो हमारे लिए बहाया गया है हम निंदा करते हैं। How we will be condemned, we can understand, brother. हम कब जो है ठुकराए जाएंगे मेरे भाई और बहनों, That condemnation will not give forgiveness. हमें जो है ठुकराया जाना हमें माफी नहीं देगा। फिर Ephesians 4:30 says, इफ्सियां देखिए, इफ्सियां 4 Ephesians chapter 4 verse 30 says, इफ्सियां 4 की 13 आयत कहती है, grieve not the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, because you have been sealed by us unto eternal life. क्योंकि तुम उस पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगाए जा चुके हो, छाप लगी है। It is very dangerous to fall in the hands of Heavenly Father. ये बहुत ही भयंकर बात है कि स्वर्गीय परमेश्वर के हाथों से गिर जाना। We can't be funny with God. हम परमेश्वर को ठट्ठा मजाक में नहीं उड़ा सकते। We have to stay and respectful to the love of God and value that sacrifice which God had to do for us and shed His blood on this earth.
हमें परमेश्वर के कलाम की इज्जत करनी है और उसका लहू जो हमारी खातिर बहाया गया हमने उसको इज्जत देनी है। In our lessons in future, whenever we get a chance, God willing, कभी भविष्य में अगर प्रभु ने फिर से मौका दिया, like God has redeemed us by His blood, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा दिया, He is going to redeem this earth also by His blood. वो इस जमीन को, कायनात को भी अपने लहू के द्वारा छुटकारा देगा। When His blood was shed, it had fallen on this ground also. जब उसने अपना लहू सलीब पर बहाया, वो लहू इस जमीन के ऊपर भी गिरा था। He is redeeming our bodies on the day of rapture. देखिए, उसने रैप्चर के दिन में हमारा जो इस शरीर का हमें छुटकारा दे देना उसने हमारा। Our souls are redeemed today, brethren, हमारी जान जो है वो अब छुटकारा पा चुकी है but भाई, our bodies are not redeemed yet. पर हमारा शरीर अभी छुटकारा नहीं पाया And हुआ। our body is a part of the ground. हमारा शरीर इस जमीन का हिस्सा है। So when our body is not redeemed, the ground is also not redeemed. अगर हमारा शरीर छुटकारा नहीं पाया हुआ है तो अभी हम ये जमीन भी छुटकारा पाई हुई नहीं है। First, He will redeem our bodies, which is a part of the ground. पहले वो हमारे इस शरीर का छुटकारा देगा जो इस जमीन से। On the day of the rapture, our redeemed soul will join with the redeemed body. देखिए, रैप्चर वाले दिन हमारा जो शरीर छुटकारा पाया हुआ शरीर है वो हमारी जान जो है हमारे उसके साथ जुड़ जाएगा। That will become our total redemption. तब देखिए जाकर हमारा टोटल छुटकारा होगा। But when He makes the new heaven and the new earth, लेकिन जब वो नया आकाश नई पृथ्वी बनाएगा after millennium, 1000 साल बाद, when He will give the earth a baptism of fire, तब वो इस जमीन को पवित्र आत्मा के आग का बपतिस्मा देगा। that time He will redeem this earth also. तब वो इस जमीन का भी छुटकारा करेगा। That time the curse which is on the earth will go away. तब जाके इस जमीन का जो श्राप है वो छूट जाएगा। Then only this earth and this heaven will become a new heaven and new earth. तब जाके ये जमीन और आसमां देखना नए बन जाएंगे। On the day of the rapture, our soul and the body has become new. रैप्चर वाले दिन हमारा ये शरीर, हमारी जान जो है सब नया बन जाएगा। In the new heaven and new earth, He will bring us back on this earth only after redeeming this earth. हमारे देखिए इस नया जीवन, हमारा नया छुटकारा पाया हुआ शरीर तभी हमें वापस भेजेगा वो प्रभु। Our redeemed personality will not come back to that world which has got so much trouble like today. हमारा जो छुटकारा पाया हुआ शरीर जो है वो बड़ी मुश्किल मुसीबतों से नहीं आएगा जैसे अब हम मुश्किल मुसीबतों में हैं। God is doing His plan every day, brother. परमेश्वर रोजाना अपनी योजना बना रहा है मेरे भाइयों। Our sincere, earnest effort today should be, हमारे जो है रोज हमें कोशिश करनी है we परमेश्वर, should not sin against the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह नहीं करना। If by chance anything happens, we must repent immediately. अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है उसी वक्त हम तौबा करें। But we must leave our wrong attitude of becoming stubborn and persistently rejecting the word of truth. और हमारा जो गलत स्वभाव है, लड़खड़ाने वाला, परमेश्वर के वचन को ठुकराने वाला, उसे छोड़ दें। We can make mistakes. He can forgive us for our mistakes. हम गलतियां करते हैं, वो हमारी गलतियों को माफ करने की क्षमता रखता है। Mistakes are not the real sin. गलतियां जो हैं वो असली गुनाह नहीं है। Real sin is unbelieving and rejecting the word of God. जो गुनाह है वो है परमेश्वर के कलाम को ठुकराना ही असली गुनाह है। Paul says once you have tasted the truth, संत पौलुस कहता है कि जब तुमने सत्य का स्वाद चख लिया, you have received the Holy Ghost, तुमने पवित्र आत्मा पा लिया, then if you reject it, तब तुम अगर ठुकराते हो, that means the blood of Jesus Christ, you are making a fun of blood of Jesus Christ, and that will not be forgiven. तब तुमने परमेश्वर के लहू का जो है वो निंदा मजाक उड़ाया है, वो माफ नहीं होगा। God has loved and redeemed us. परमेश्वर हमें प्यार करता है, छुटकारा देता है। He laid His life and blood for us, उसने हमारी खातिर अपना लहू बहाया, and we can be that much notorious that we are insulting that blood. तो क्या हम अब परमेश्वर के उस लहू का अपमान करें? We are rejecting the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया हमने।
Only an evil spirit, only a spirit of devil can dare to do it. ये जो है ये शैतान का, बुरे आत्मा का काम है। And such spirit will go to hell. ऐसा आत्मा जो है नरक जाएगा। God will never forgive such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। They are not ignorantly rejecting God. वो परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। They are doing it knowingly. वो जानबूझ के भी कर रहे हैं। They are deliberately doing it. वो इसको अपनी इच्छा के जानकर भी ये गलतियां गुनाह It करते is हैं। more dangerous for the people who know the truth and then they back down from the truth. उनके लिए तो और खतरनाक है जो सत्य को जानकर गुनाह कर रहे हैं। Because ignorance can be a small sin, क्योंकि जो इग्नोर करना है वो एक छोटा गुनाह हो सकता है, but doing deliberately and knowingly is a sin which God says will not be forgiven. पर परमेश्वर का वचन जानकर भी गुनाह करना जो है ये एक बड़ा पाप है। So brethren, we must respect the word of God. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन की इज्जत करनी चाहिए। Anything which is connected and directed by the Holy Ghost, we should stay humble and obedient and respect it. कोई भी चीज जो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखती है, ताल्लुक रखती है, वो हमें कबूल करनी है हलीमी के साथ। Whether it is talking about the word of God in vain, taking the name of Jesus in vain, praying with the vain words, and doing things which are going to give trouble to Holy Spirit. और जो भी पवित्र आत्मा के साथ ताल्लुक रखती है, प्रार्थना, बपतिस्मा, ईमान, विश्वास, उसको हमने कबूल करना है। Even rejecting the promises of God is a sin against the Holy Spirit. यहाँ तक परमेश्वर के वादों को ठुकराना भी जो है वो पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह है। Everything which is within the word of God and commandment of God must not be rejected. परमेश्वर का कलाम और वचन जो कुछ भी है, हमें उसको ठुकराना नहीं है। Because we don't know at what moment we leave this world. क्योंकि हम नहीं जानते हम किस घड़ी ये जगत को छोड़ जाएंगे। And if that happens in this condition, और अगर ये इस समय हो जाता है, we have committed the unpardonable sin for which there will be no forgiveness. देखिए हम फिर उस गुनाह का हिस्सा हैं जो माफ होने वाला नहीं है। That is why Bible says Ephesians 4:30, इसीलिए प्रभु का वचन इफिसियां 4 कहता है, grieve not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Don't give pain. Don't disrespect the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की निंदा ना करो, Because Holy Ghost is God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, And God is in His Word. परमेश्वर अपने वचन में है। Even insulting the Word of God is insulting God and Holy Ghost. देखिए परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाना परमेश्वर का मजाक उड़ाना है। Also, if a brother is preaching the Word of God, sharing the Word of God, and if he is preaching the true Word of God, even insulting that is a sin against the Holy Ghost. अगर कोई भाई परमेश्वर का सच्चे वचन का प्रचार करता है, अगर वो भी परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाता है, तो वो भी गुनाह और सजा के। If somebody is insulting a preacher or a teacher who is preaching the truth, then that person is also committing the sin against the Holy Ghost. अगर कोई भाई बहन परमेश्वर के दास का, सेवक का जो सच्चा सुसमाचार सुनाता है, उसकी भी निंदा बुराई करता है, तो वो भी सजा के अधीन हकदार है। Jesus said, I send you into this world. प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने चेलो तुम्हें इस संसार में भेजा है। One who receives you, he receives me. जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। Because we are preaching Jesus. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। And Jesus is the Word of God. और प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन है। If somebody rejects what we preach as Word of God, that means that person rejects Jesus. देखिए अगर कोई यीशु मसीह के वचन को ठुकराता है, वो प्रभु को ठुकराता है। And Jesus is God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। And God is Spirit. परमेश्वर आत्मा है। That means by doing this, that person is rejecting Holy Spirit. इसी तरीके से एक इंसान पवित्र आत्मा को ठुकरा देता है। This is why this sin will not be forgiven. इसीलिए वो गुनाह माफ नहीं होंगे। Especially by those people who know that this is the truth. खास करके वो लोग जो सत्य को जानकर गुनाह करते हैं। Many people think, oh, I have been a good Christian for many years. Now I'm fed up of this. I think there is nothing in it.
बहुत सारे लोग हैं, मैं मसीह हूँ, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ, मैं अब और विश्वास नहीं करता। In the modern world, this is something we hear every day, brethren, from many, many good people who have been with the Lord. आज के युग में ये बात हम बहुत सारे मसीहों से सुनते हैं कि वो So कहते हैं this warning is for the believers ये चेतावनी विश्वासियों के लिए है, because they have known the truth. क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, They have known the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा को जानते हैं। They know by doing this, they are giving an injury to the Holy Ghost. और देखिए वो जानकर भी जो है ये दुख देते हैं पवित्र आत्मा। God, who is a judging God, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर He है, is going to bring them to the judgment. वो न्याय में लेके आएगा। He is not only going to destroy their body, He is going to destroy their soul also. वो सिर्फ शरीर को खत्म बर्बाद करने नहीं जा रहा परमेश्वर, बल्कि आत्मा और जान को भी बर्बाद करने जा रहा है। We must fear Him who can destroy both body and soul. हमें उससे डरना चाहिए जो आत्मा और शरीर और जान को नरक में डालने की ताकत रखता Devil है। can destroy our body on this earth, this physical body. शैतान जो है वो भी हमारा शरीर जो है उसको खराब कर सकता है, तंग कर सकता है। Devil cannot destroy our soul. शैतान हमारा आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Judgment and destruction of our soul is in the hand of Almighty God. न्याय और हमारा आत्मा जान जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। So we must fear Him who can destroy both body and the soul. हमें उससे डरना चाहिए जिसके हाथ में आत्मा और जान है। So this is a lesson, this is a warning, this is an encouragement for all of us that, brethren, when we know the truth, we should not reject the truth in any case. ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे लिए वार्निंग है परमेश्वर के वचन की तरफ से कि हमें परमेश्वर के वचन को ठुकराना नहीं चाहिए। And by chance, if anything happens like this, we must immediately ask for forgiveness and cry out to God, Lord, I don't intend to do this. Lord, please forgive me for this. I don't want to leave this world in this condition. अगर हमसे कोई गलती गुनाह हो जाता है, उसी वक्त तौबा करें, माफी मांगे। इस पाप के साथ हम ये जमीन नहीं छोड़नी चाहिए हमें। Doing those mistakes which we call sin are not the sin. The sin is this, when we reject the God and His Spirit. जो दुनिया पाप कहती है वो पाप नहीं है, पाप ये है जो सच्चे वचन को ठुकराना पाप है। Those are the attributes of the sin. ये तो पवित्र गुनाह के जो है एक रूप है। Those are the fruits of this sin. वो तो देखिए गुनाह के जो हैं वो आगे अगुण है। We have to be careful that we don't get into this situation of sin. हमें सावधान रहना चाहिए कि हम गुनाह ना कर दें। Now, how can this be happen? How can we protect ourselves? हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? Staying in the touch of the Holy Spirit every day. रोजाना हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें। Praying in the Spirit every day. हर रोज जो है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। Hearing the word of God, reading the word of God in the Spirit every day. परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ें, परमेश्वर का पवित्र वचन सुने हर रोज। Respecting the men of God who preach in the Spirit. परमेश्वर के दासों की इज्जत करें जो सुसमाचार सुनाते हैं। Loving our brethren in good spirit. अपने भाइयों से प्रेम रखें। Who are our brethren? हमारे भाई कौन है? Jesus said, my father and my mother and my brother and my sister, they are not my brethren. प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे माँ बाप भाई जो हैं ये मेरे भाई नहीं है। Who are my brethren? कौन है मेरा भाई? Those who do the will of my God. जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। This is the lesson for us, brethren. ये हमारे लिए जो है विषय है परमेश्वर। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे। May God protect us. परमेश्वर हमें संभाल के रखे। And may God give us the wisdom that we don't fall into the trap of the devil. परमेश्वर हमें बुद्धि समझ दे ताकि हम शैतान की योजनाओं से, शैतान के कार्यों से बच सकें। We don't want to get into the created hell.
हम जो हैं वो नरक में नहीं जाना चाहते, We want to go into eternity with God. हम हमेशा की जिंदगी में प्रभु के साथ जाना चाहते हैं। May God bless you all, brother. प्रभु आप सबको आशीष दे भाई और बहनों। We thank God for His word, हम प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं and we thank God for this opportunity. और इस सुनहरी अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। So, if there are any other prayer requests, we know there was a prayer request by Sister Sangeeta that she was unwell or she was feeling weak. We will pray for her. And now we will close our meeting. And sorry, today the time has gone a little extra. But sometimes it may happen. But we never regret, because any time spent in the presence of God is never a regret. भाई बहनों को अब हम सभा समाप्त करते हैं और हम सिस्टर रेखा के लिए, संगीता के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं खेद करता हूं कि आज थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया गया, लेकिन जो भी समय हम परमेश्वर में बिताते हैं उसके लिए हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और हमें खुशी है कि हमने परमेश्वर के लिए वो समय दिया है। आमीन। Brother Krishna, we can close this meeting with a prayer. Brother Krishna will have a short prayer, and we close this meeting and thanking God for the meeting. Brother Krishna will pray with us. Thank you, brother. God bless you, brother. आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के उजरी में सिर निहुराते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सृजनहार, पालनहार, तारनहार, परम प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हजुर जस्तो दयालु अनुग्रही प्रभुलाई धन्यवाद, सृष्टिकर्ता प्रभुलाई धन्यवाद। यो प्रभु हजुर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र हामीहरू सृष्टि हौं हजुरका। यो प्रभु यो कुरा हजुरले भन्नुभयो र हजुरमा अनन्त गुण छन् प्रभु, त्यो कुरा हजुरले आजको वचनमा भन्नुभयो प्रभु। त्यसमध्ये हजुर सृष्टिकर्ता पनि हजुरको एउटा गुण हो र प्रेम पनि हजुरको एउटा गुण हो भन्ने कुरा हजुरले जसरी हामीहरूलाई देखाउनु भयो। जो प्रभु हजुरले प्रेम, हजुरको प्रेमको कारणले हजुरले हामीहरूलाई पापमा छँदैमा हामीहरूलाई प्रेम गरेर हामीहरूलाई बचाउनको लागि र हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि हजुरले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो कि जसमाथि विश्वास गरेर, जसलाई अंगीकार गरेर हामीहरू पनि उद्धार र मुक्ति पाउन सकौं भनेर उहाँले रगत बहाउनु भयो। हो प्रभु, जो प्रभु क्रुसमा टाँगिएर र रगत बहाउनु भयो र हामीहरूलाई उद्धार र मुक्तिको जुन हजुरको योजना दियो त्यो देखाउनु भयो प्रभु। र हामीहरू जसले विश्वास गर्छौं उहाँको नाउँमा बप्तिस्मा लिन्छौं र उहाँलाई स्वीकार्छौं र अन्तको दिनसम्म जो स्थिर रहन्छ त्यही नै उद्धार र मुक्ति पाउने छ। र जो उहाँलाई चिनेर पनि, उहाँलाई जानेर पनि, उहाँलाई बुझेर पनि फेरि पनि पवित्र आत्मालाई शोकित गर्छ र पवित्र आत्मालाई अस्वीकार गर्छ, जानेर पनि फेरि अस्वीकार गर्छ, तिनीहरूले कहिले पनि तिनीहरू फेरि पनि प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने काम गर्छन्, यिनीहरूको कुनै पनि मुक्ति हुने छैन र दोबारा प्रभु यसको क्रुसिफाई हुने छैन भन्ने कुरा हजुरले जसरी वचनमा भन्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। यो सबै हजुरले कति मिठो वचन दिनुभयो प्रभु, हजुरको दास, हजुरको छोराको माध्यमबाट दिनु प्रभु, त्यसको धन्यवाद छ प्रभु। यो वचनको लागि धन्यवाद हो प्रभु। यो वचन हामीहरूको हृदयको साक्षी पार्टीमा राखिदिनुहोस् र प्रभु हामीहरू यही वचन अनुसार, वचन सुन्ने मात्र होइन, वचन अनुसार चल्ने हुन सकौं प्रभु, त्यही अनुसार हामीहरू जिउने हुन सकौं प्रभु। त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्, त्यो समझ दिनुहोस् प्रभु कि हामीहरू हजुरको वचनमा सिर्फ लिसनर होइन, हामीहरू हजुरको वचन सुनेर त्यो वचन अनुसार चल्ने हुन सकौं प्रभु, जिउ प्रभु। हालेलुया प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद हरेक चीजमा हजुरलाई धन्यवाद दिँदै र प्रभु यो जुन हामीहरू यस प्लेटफर्ममा जम्मा भयौं प्रभु, त्यो हाम्रो योजना होइन, हजुरको योजना हो प्रभु। हजुरले डोर्याउनु भयो र हामीहरूलाई यहाँ बोलाउनु भयो र हजुरले हामीहरूसित कुरा गर्नुभयो, त्यसको धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। र प्रभु हामीहरूबाट भएका सबै भूल गल्ती अपराधहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै आराधना गर्छु प्रभु। हो प्रभु, हामीहरू त पापमा छौं, किनकि यो संसार जुन पृथ्वी छ, जुन पृथ्वीमा हामीहरू बसेका छौं त्यो श्रापित छ, त्यसैको हामीहरू उब्जानी खाएर बढेका छौं। यो शरीर त यही माटोमा जाने हो प्रभु, शरीरमा छन्जेल हामीहरूबाट भूल गल्ती हुन सक्छ भन्ने कुरा हजुरले जसरी देखाउनु भयो प्रभु, त्यसको धन्यवाद छ प्रभु। र प्रभु अब सबै चीजमा हामीलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु, हो प्रभु यो संसारमा छन्जेल हामीहरूमा दुख प्यादा
हरेक चिजहरू सम्भव छ प्रभु। ओ प्रभु, हजुरले जान्नुहुन्छ प्रभु, र हजुरले सिर्जिएका शरीर हुन् प्रभु, यो माटोबाट सिर्जिएको हो र माटोमै जाने हो प्रभु। फेरि पनि यहाँ जतिको बेर रहन्छौँ हजुरलाई नै भज्न पुज्न, यो शरीरको द्वारा हामीहरू हजुरलाई नै भज्न पुज्न सक्छौँ। त्यसैले यो शरीर स्वस्थ निरोगी होस् र जसले गर्दाखेरि हजुरलाई नै महिमा चढाउन सकौँ भनेर हो हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। जो प्रभु हाम्रा बीचमा जो अस्वस्थ छन्, सिस्टर रेबेका, सिस्टर संगीता, सिस्टर अन्जु लगायत अरू पनि जो कोही अस्वस्थ छन् प्रभु, तिनीहरूलाई हजुरले हजुरका ती बलन्त बाहुलीले, चङ्गाईका बाहुलीले, कल्वरी क्रुसमा काँटी ठोकिएका ती दाहिने बाहुलीले छोइकन यही घडी पूर्ण चङ्गा गरिदिनुहोस् र तिनीहरूबाट महिमा लिनुहोस् भन्दै आराधना गर्छु। र हाम्रो बीचमा कोही घटी कमी खाँचोमा छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई हजुरले आशिष दिनुहोस् भन्दै आराधना गर्छु शिव प्रभु। र प्रभु हजुरका हरेक परिवारमा घरानामा हजुरले आशिष दिनुहोस् भन्दै विन्ती गर्दै प्रभु यहाँ जम्मा भएका भेडा भएका र जो यहाँ उपस्थित हुन नसकेका सबैलाई हजुरले आशिष दिनुहोस् भन्दै र विशेष गरी प्रभु हजुरका वचन दिने दास छोरा हजुरले हजुरको योजना थियो प्रभु, त्यसैले हजुरको छोरा दास ब्रदर इमानुएललाई हजुरले आज उहाँ ट्रेनमा गइकन पनि फेरि फर्काएर लिएर आउनुभयो प्रभु, किनकि हजुरको वचन यहाँ प्रचार गर्नु थियो त्यो छोराको माध्यमद्वारा। त्यसैले हजुरले छोरालाई यहाँ ल्याउनु भयो प्रभु र यो प्लेटफर्ममा उपस्थित गराउनु भयो र उहाँ छोराको माध्यमबाट हजुर बोल्नुभयो। त्यो छोरालाई हजुरले आशिष दिनुहोस् प्रभु, उहाँको जीवनमा उहाँको परिवारमा हजुरले आशिष दिनुहोस् र वचनलाई हजुरले दिनुभएको त्यो वचनलाई हजुरको छोराको वचनलाई फेरि ट्रान्सलेट गर्ने त्यो छोरालाई पनि हजुर ब्रदर जसविन्दरलाई र उहाँको परिवारलाई हजुरले आशिष दिनुहोस् भन्दै विन्ती गर्दै हरेक चिज हजुरको हातमा राख्दै र आगामी सप्ताह यदि प्रभु हजुरको आगमनमा देरी छ भनेदेखि आगामी हप्ताका योजनाहरू सबै हजुरको हातमा राख्छु र आगामी मिटिङको सबै कार्यक्रमहरू हजुरको हातमा राख्दै हरेक चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिँदै माग्छु आशिष प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य नाममा आमेन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर कृष्णा। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु का इस समय के लिए धन्यवाद हो और हर चीज के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने चाहा तो अगले इतवार को फिर हम इस सभा में हाजिर होंगे जैसे उसकी मर्जी हुई। वी थैंक गॉड फॉर दिस टाइम, दिस मीटिंग एंड दिस असेंबली दैट वी अलाउड एट दिस टाइम। वी कुड हियर अबाउट हिज वर्ड, वी कुड मेडिटेट and we have learned many things from his word, and Holy Spirit has guided us to know his word, and we must always respect and we must have a reverence for Holy Spirit and for God, because God is the Spirit and God is in his word. So when we respect his word, we respect God and we respect Holy Spirit, and we should stay in the truth. We should not try to abstain, we should not try to insult, we should not try to make a mockery or blasphemy about this Holy Spirit, because we know that this sin will not be forgiven. This is the most dangerous thing, especially when we know the truth, especially when we have understood the truth. Then to go back to the situation from where God has brought out us, this will be insulting the blood of Jesus Christ, which was shed for us. We were sinners. We were not good people. It is very difficult to shed blood for even for good people. For us sinners, for us bad people, he gave his holy blood. How can we insult it? How can we bring it to a low value? How can we make a mockery of this? We have to be very, very careful. We must respect the word of God, and we thank God that we will take this promise in our hearts, that Lord, I will not do something which will grieve the Holy Spirit, which will reject your promises, which will reject the word of God. Lord, you have done everything for us. What can I give you? You have given everything. You have given your grace and salvation and thy mercy. And Lord, we just want to stay humble so that, Lord, we continue in you, so that we will go back to that same eternity, because you are eternity, God. If we are a part of you, we can never be lost. Because the Bible says a child of God can never be lost, because they will never leave that promise, they will never leave the truth. Once we have received the truth, we will never leave it. Otherwise, in the first place, it was not a real thing. If our conversion is true, it will not take us back to the old condition. But if our conviction is true, conversion was true, the new birth experience is true,
then it can never, devil will never take it away, because Jesus has purchased it from his blood, by his blood, and his blood has the power. It has the life for eternal life. It is not a life of this world. It is not a life of few years. The blood of Jesus Christ has eternal life. He has paid it for us, and he has paid the price for us. How can we reject the price? How can we insult the price? He has paid because of his love. So we thank God. God bless you all, brethren.